Hello, 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 hello. So good evening to all. सभी ने ज्वाइन होना है फास्ट. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सभी. प्रचंड वेगाने सगळ्यांनी ज्वाइन करायचं आहे. आज आपण फार्मास्युटिक्स रिव्हिजन घेणार आहोत, रॅपिड रिव्हिजन. प्रचंड वेगाने सगळ्यांनी ज्वाइन करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे पिल्लूवाल्यांनी पण जॉईन करायचं आहे आणि बाबू सोनावाल्यांनी पण जॉईन करायचं आहे. ठीक आहे, सगळ्यांनी जॉईन करायचं आहे फास्ट मध्ये, प्रचंड वेगाने, जेणेकरून तुम्हाला फार्मास्युटिक्स फॉर GPAT 2023-2024, not only for GPAT, for Niper also. So we are going to take a rapid revision on pharmaceutics. So it is a very, very important part. So you have to join quickly, right? So I'm first time coming live. I have no experience of doing any sessions live on YouTube. First time I am doing live on YouTube, but I hope everything will be fine. And I know I am very much assured that you will like it. So we are going to see this pharmaceutics part. Just wait 2 minutes. I will inform in the various group to join live. Just let me know whether am I audible you clearly. एक बार मुझे कंफर्म करना है कि आपको सबको प्रॉपरली वॉइस आ रहा है क्या है. So I will try to cover at least 35-40 questions in the today's session. So just let me know once whether am audible you perfectly or not. आपको सबको आवाज आ रहा है प्रॉपरली, ये मुझे एक बार कंफर्म करो ताकि मैं आगे मूव हो सकूं. कमेंट करके बताइए एंड बी फास्ट. प्रचंड वेगाने सांगायचं आहे. आवाज येत आहे का? Okay, yes sir, okay. Bhumika Shimpi, yes. So we are going to see rapid revision for pharmaceutics part.
So, in your pharmaceutics, what are the different important chapters? First, in the pharmaceutics, what are the important different chapters for your GPAT Niper DI Pharmacist exam? सो फार्मास्यूटिक्स में से आपके जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए भी, तो कौन से चैप्टर होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? तो आपको याद रखना है कि प्री फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर दैट टैबलेट चैप्टर इज वेरी, आफ्टर दैट योर कैप्सूल इज इंपॉर्टेंट. देन सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटरीज, aerosols, these chapters are important. Okay, then parental products are there. After that, novel drug delivery system is there. After that, cosmetic part is also there. So these are the very very important topics. Out of that, the most important topics for pharmaceutics, जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% आता ही आता है. ठीक है. So out of that, pre-formulation chapter is very important. You have to do by hook or by crook. Then tablet, you should have thorough knowledge of your tablet chapter. Capsule is very very important. Then after that, suspension, emulsion, they are also important. Again, aerosol is very very important. Lot of times they have already question asked from that chapter. After that, parental products or injections, that is again the most important topic. After that, suppository is there. After that, novel delivery is there, and cosmetics. These are the very very important topics you have to. So what is pre-formulation studies? Pre-formulation studies is nothing but the studies which is done before the actual formulation. So there are different kind of study. There are different. You have to check whether your drug is compatible with your excipient or not. So a lot of various kind of study you have to do before formulation to optimize the formula. Okay. Suppose that you want to formulate some new drug. So before that you have to do some studies. Before that you have to do studies of regarding your drug molecule. So whether it is its solubility, for example, its solubility, then its polymorphism, crystallinity, polymorphism, then different bulk characterization properties like density, porosity, okay, bulk density, lot of things you have to do. Okay. After that, drug excipient compatibility, whether your drug is compatible with excipient or not. So you have to do lot of pre-formulation studies. So I'm not going in the detail, but what is important, I would like to highlight on it. Okay. So these are the important key terms from the pre-formulation. So physical characterization, in that you are going to study bulk properties, stability profile, and solubility profile. After that, formulation development, in that you are going to study compatibility, stability, dissolution, bioavailability. Okay. So we'll see the main important core part of this pre-formulation. So first of all, first part is nothing but the research part. So you have to do research. You have to find out the molecule. You have to optimize the prime. That is primary finding and molecular optimization. So that is not important for your GPT exam. Okay. So we are going to study. For example, you have to study solid state physical properties of drug, like compaction properties. Whether drug is what are the compaction properties of your, because after all you are going to formulate the drug in a tablet, so you need to understand the compaction properties of the drug. So in that you have molar volume, density, etc. Density, refractive index, thermal and electrical conductivity, hygroscopicity. In the thermodynamic properties you are going to evaluate or study. यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना है, कंपाउंड का कितना है, सब्लिमेशन टेम्परेचर देखना है, इंटरनल एनर्जी कितना है, एंथैल्पी कितना है, हीट कैपेसिटी कितना है, एंट्रोपी कितना है, free energy and chemical potential, thermodynamic activity, vapor pressure, solubility, thermodynamic property. तो ये आपको स्टडी करना है उसमें. Okay, then you have to also study spectroscopic or analytical properties. That उसमें आता है UV, IR, rotational और nuclear spin radius. जैसे IR, NMR, mass, सबको आपको देखना. काइनेटिक प्रॉपर्टी में आता है आपको डिसोल्यूशन रेट, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, स्टेबिलिटी, एक्सेट्रा. ठीक है.
सरफेस प्रॉपर्टीज में भी आपको सरफेस फोर्स, सरफेस, ओके, डिफरेंट सरफेसेस, इंटरफेशियल टेंशन, क्रिस्टलिनिटी, ये सब पढ़ना है. ये यू हैव टू. सो वट एवर स्टडी यू आर डूइंग बिफोर फॉर्मुलेशन, to optimize the formulation to give the best result of your product. अगर आपने बिना प्री फॉर्मुलेशन स्टडी किए अगर आपने टैबलेट बनाया तो उसमें बहुत सारे दिक्कत आ सकता है. स्टेबिलिटी का आ सकता है, इनकम्पेटिबिलिटी का आ सकता है, या फिर आपका बहुत सारा डिग्रेडेशन भी हो सकता है. सो वट एवर स्टडीज यू आर गोइंग टू डू बिफोर द फॉर्मुलेशन, वट एवर यू वांट टू, you have to optimize your formula up to the best. That is nothing but the pre-formulation studies. So in the mechanical properties, you have to check hardness, tensile strength, then compactability, flow properties, blending, etc., etc. Okay. Most of the organic compound, they form a salt by abstracting the proton from ionized drug and neutralizing it with the counter ion. So that is salt formation. That is also important in the pre-formulation. Okay. Generally, salts of drugs are more water soluble than unionized drug. You might know, you might have seen unionized form of drug will have higher solubility in the lipids. So unionized form of drug will have lipid solubility, and it can easily cross the barrier or membrane. तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है ड्रग का वो लिपिड सोल्यूबल होता है और वो जल्दी एब्सॉर्ब होता है. ठीक है. फॉर एब्सॉर्प्शन यू नीड अनआयोनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल. एलिमिनेशन यू नीड वाटर सोल्यूबल ड्रग और आयोनाइज्ड ड्रग. ठीक है. एब्सॉर्प्शन होने के लिए आप क्या कौन सा ड्रग चाहिए? लिपिड सोल्यूबल ड्रग चाहिए, अनआयोनाइज्ड चाहिए. आपको बॉडी में से निकालने के लिए कौन सा ड्रग चाहिए? उसी ड्रग का आयोनाइज्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी जाके वो वाटर में सोल्यूबल होगा और यूरिन से बाहर जाएगा. ठीक है. So salt formation is also important. So these are the main headings under your pre-formulation. So you have to do solubility studies. In that you have to do PKA determination. PKA मतलब आपका okay dissociation constant. Then pH solubility profile. मी ऍक्च्युअली लेक्चर मध्ये आहे. मी तुम्हाला एक 8 वाजता कॉल करू? नाही ना, मी नाही राहणार मग 8 वाजता. बोला ना, काय म्हणता? हे काय कॉर्पोरेट ऑफिस आणि दोन्ही ऍड्रेसला काय करायचं? कुठलं? चिखलठाणा आणि याचं. नाही नाही, मी सचिन बोलतोय. अरे सर, तुम्ही बोलाय का? Okay, good evening to all. Good evening to all. No problem. Good evening to everybody. Okay. So these are the main headings. Solubility studies. You have to do PKA determination. You have to study dissociation constant of your drug. pH solubility profile. कि pH का इफेक्ट क्या आता है? pH अगर कम होगा तो solubility के ऊपर क्या इफेक्ट है? pH अगर बढ़ गया तो solubility क्या होगा? That is pH solubility profile. Common ion effect you have to understand. इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी. ठीक है. कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी में कितना चेंज होता है? रिमेंबर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज विल इंक्रीज द 5 fold solubility. So if you increase the temperature by 5 degree, there will be 5-fold change in the solubility, like that. Then partition coefficient, dissolution. In the bulk characterization, you have to study crystallinity, hygroscopicity. Okay, so you might have seen that. So stability analysis, solution stability, solid state stability, and drug excipient compatibility. तो अभी आप बोलेंगे सर आप इतना सब पढ़ के बोल रहे हो, सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है ये बोलो हमको. तो सबका गाना बजेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सबका गाना बजाऊंगा मैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखो पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. हर एक कंपाउंड अगर आपका है तो वो बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. तो उसको उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. It is very important to study whether your compound showing polymorphism or not. Okay. So suppose that you have one compound you are going to see under it microscope. अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. So if your compound is non transparent, if your compound is a transparent, ठीक है. अगर आपका कंपाउंड ट्रांसपेरेंट है तो you can say it is a birefringous. Okay. If your compound is a transparent, that means it is a birefringous. Now in that you have two subtype. फर्स्ट वन इज अनिसोट्रोपिक एंड सेकंड वन इज आइसोट्रोपिक. जो अगर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर ट्रांसपेरेंट है तो बायफ्रिंजेस बोलेंगे उसको. ओके.
और उसमें क्या है कि अगर आपके कंपाउंड को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है, या एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, okay, so if your compound has a one refractive index, it is known as a isotropic, and if your compound has a one and more refractive index, it is known as a anisotropic, right? And now in the anisotropy, you have uniaxial matlab two refractive index, and biaxial matlab three refractive index. So if your compound is a transparent, it is called as a bifringes, and they are of two type. So isotropic means having one refractive index, anisotropic means more than one refractive index, right? Now more than one means एक भी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है. तो अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके कंपाउंड को, उसको बोलेंगे यूनी एक्सेल. अगर तीन है तो उसको बोलेंगे बाय एक्सेल, ठीक है. नाउ इफ योर कंपाउंड इज नॉन ट्रांसपेरेंट, अगर नॉन ट्रांसपेरेंट है तो उसमें दो टाइप होता है, एक तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक तो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ इफ योर कंपाउंड इज नॉन ट्रांसपेरेंट, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नोन एज हैबिट. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. external compound of external structure of your compound or external structure of your crystal is known as a habit. You have to remember HRT क्वेश्चन आला है. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है external structure of crystal is known as a habit. Okay, is known as a habit. नाइपर में आता है क्वेश्चन. Now internal structure. So in the internal structure they are again of two type. So internal structure may be either crystalline structure or amorphous structure. तो crystalline क्या है, amorphous क्या है? So remember in the crystalline there is a there is a systematic arrangement of particles in the crystal lattice. क्या है उसमें? systematic arrangement of particles in the crystal lattice. Okay, एक crystal में क्या है? systemic arrangement. So that's why there is a less energy, system is more stable, and that's why the crystalline form of compound will have less solubility. तो crystalline में क्या होता है? systemic arrangement होता है, उसकी वजह से low energy रहता है, and that's why low solubility. Now in the amorphous, second one is amorphous. यहाँ पे क्या है कि there is a random arrangement of particles in the crystal lattice, and that's why system is unstable, known as having higher energy, and that's why it is a high solubility. तो amorphous compound का solubility ज्यादा होता है. तो क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि which form of compound will have more solubility. उसका आंसर रहेगा amorphous. बट जीपैट वाले बहुत शातिर है, तो वो क्या करते हैं, उनको दिमाग ज्यादा रहता है. मतलब वो पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा which form of compound is more soluble. दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कंपाउंड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी. तो आपको ऑप्शन में तीन ऑप्शन देंगे, तीन या चार ऑप्शन रहता है, चार ऑप्शन रहता है. पहला ऑप्शन रहेगा कि क्रिस्टलाइन इज मोर देन अमोर्फस इज मोर देन मेटास्टेबल. ओके, दूसरा ऑप्शन में रहेगा अमोर्फस इज मोर देन क्रिस्टलाइन इज मोर देन मेटास्टेबल. तीसरे ऑप्शन में रहेगा क्रिस्टलाइन इज मोर देन अमोर्फस इज सॉरी क्रिस्टलाइन इज more than metastable is more than amorphous. और लास्ट ऑप्शन में रहेगा amorphous is more than metastable is more than crystalline. So याद रखो, you have to remember amorphous form of compound will have highest solubility. After that metastable state is there and lowest solubility is of crystalline form. तो सबसे ज्यादा होता है amorphous का solubility, क्योंकि वो stable नहीं होता है, that is a unstable system. तो देयर इज हायर एनर्जी. उसके बाद में आता है मेटास्टेबल और उसके बाद में क्रिस्टलाइन. तो क्रिस्टलाइन को सबसे कम सॉलिबिलिटी, मेटास्टेबल को मिडल वाला है मेटास्टेबल, एंड टॉप का सॉलिबिलिटी किसका? amorphous. Okay, now in the crystalline also you have to single polymer and molecular adduct. Single polymer and molecular adduct. अभी ये molecular adduct क्या होता है? So if during the crystallization, if the solvent of crystallization or the solvent of crystallization it get entrapped in the crystal, that is known as a molecular adduct. मतलब वो वहाँ पे आपका पार्टिकल्स होगा या जो भी आयंस होंगे आपके जो आपका जो ड्रग है उसके आयंस प्लस सॉल्वेंट, वो अगर एंट्रैप होता है तो उसको बोलेंगे मोलिकुलर अडक्ट. सो इन दैट आल्सो यू आर टू टाइप. सो इफ सॉल्वेंट एंड ड्रग इफ दे आर इन अ 1:1 proportion, दे आर नोन एज अ स्टोइचियोमेट्रिक. अगर एक ही प्रोपोर्शन में उसका एंट्रैपमेंट होता है, if there is an entrapment of solvent and your drug in a 1:1 proportion known as a stoichiometric, okay, molecular adduct. In that you have solvates and hydrates. अभी ये solvates क्या होता है? if you are taking a general term for example like, तो आपका जो solvent of crystallization है, तो वो solvent अगर
स्पेसिफाई नहीं करते आप, तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट्स. So solvent of crystallization if gets entrapped during the crystallization, so that is known as a solvents. Okay. Now if that solvent is a water, then it is known as a hydrates. Okay, then it is known as a hydrates. Then molecular product may be of non stoichiometric, मतलब ये क्या 1:1 proportion में नहीं रहेंगे, तो उसमें आता है केज, लेयर एंड चैनल. ओके. देन सिंगल पॉलीमॉर्फ मतलब क्या, सिंगल पॉलीमॉर्फ में भी दो टाइप आता है. मोनोटॉपिक मतलब ऑल पॉलीमॉर्फ्स आर unstable at a temperature and pressure, so you cannot isolate. Anisotropic मतलब क्या, all polymorphs are isolable. So this is a polymorphism. यहाँ पे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको मैं कवर कर दूं. ठीक है. Now next part we'll see examples of crystal habit. यहाँ पे कुछ crystal habit का दिखाया है, मतलब habit means external structure of your crystal. Okay, so acicular हो सकता है, angular हो सकता है, डेंड्राइटिक हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है. ठीक है. सो देन फ्लेकी हो सकता है, प्लेटी हो सकता है, ग्रैनुलर, इरेगुलर, नोडुलर, प्लस प्रिज्मेटिक एंड स्फेरिकल. ठीक है. सो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. ये सब क्या है, क्रिस्टल के शेप से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल हैबिट. ठीक है. नाउ polymorphism means what, ability of compound to exist or to crystallize in a more than one crystalline form. अगर आपका कोई कंपाउंड है, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपाउंड्स है, दोज व्हिच विल शो पॉलीमॉर्फिज्म. मोस्ट ऑफ द बार्बिट्यूरेट्स, जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं. ओके, यू माइट हैव सीन द chloromphenicol. So ester of chloromphenicol with the palmitic acid. So chloromphenicol palmitate, it is also showing the polymorphism. There are different forms like A, B, C. So all these polymorphic form different physicochemical properties, and that's why they can affect a dosage form, they can affect a formulation. So that's why you have to study. So if you know that polymorphic form, crystalline will have less solubility, amorphous will have more solubility. Okay, so in turns they can also affect the bioavailability. तो अगर एक को कम सोलिबिलिटी है, एक को ज्यादा है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होगा. ओके. सो क्लोम्फेनिकॉल palmitate has a 3 crystalline form A, B and C, and A, B, C and amorphous form. Okay, so amorphous form will have more solidity. Out of that form A, B, C, B form is more stable. Question आ सकता है which form of chloramphenicol palmitate is more stable. So out of that B polymorph is a more stable, right? So physical chemical properties of drug, they differs. Okay, with the internal structure of solid. For example, melting point change होगा, उसका hardness, solubility, optical properties, vapor pressure, etc. Different study, okay, different methods which are utilized in the pre-formulation for study of different properties. कि माइक्रोस्कोपी से आप क्या 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 स्टडी कर सकते हो. ठीक है. माइक्रोस्कोपी के, माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सारा आप स्टडी कर सकते हो. सो जैसे पार्टिकल साइज, okay, particle size distribution, okay, shape of your particles, okay, transparency and all that, polymorphism. So for microscopy you need only 1 milligram of sample. So for fusion method, it is known as the hot stage microscopy. Mostly it is used to study the melting of solid, melting, then degradation and all that. Okay, so 1 milligram again, DSC and DTA, differential scanning calorimetry and differential thermal analysis. You need a sample of 2 to 5 milligram. IR spectroscopy के लिए आपको 2 mg to 20 mg sample, that is enough. So there are things you can study by using IR spectroscopy. So one of is nothing but the moisture content. crystal के study भी करते हैं. X-ray diffraction. So you need a 500 milligram sample for X-ray diffraction. So you can see the crystal structure, you can study the structure of crystal. Then scanning electron microscopy, you need a 2 milligram sample. TGA, thermogravimetric analysis, you need a 10 milligram sample. Okay, so इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर. So method and application. So microscopy method or microscopy is utilized in the pre-formulation to study the nature of crystal, nature of substance, then crystal morphology. Okay, crystal morphology. Okay, then for second method, fusion method or hot stage microscopy is utilized to study the crystal in the polymorphism in the pre-formulation.
Then DSC DTA is also studied for polymorphism, crystal purity. So question आ चुका है, देखो crystal purity. So to check the crystal purity, which method is used? So differential scanning calorimetry is used for the evaluation of crystal purity. So if you get a sharp peak in the differential scanning calorimetry, that means your crystal is pure. Okay. So in IR spectroscopy, that is used for the वाटर कंटेंट एंड स्टडी क्रिस्टल. ओके. सो देन एचपीएलसी किसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए. एचपीएलसी इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसिड. एचपीएलसी क्या है? स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसिड. अभी बाकी का बोल के फायदा कुछ नहीं है, इसके दो दो के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव फास्ट. इन मॉइस्चर कंटेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन. सो मॉइस्चर कंटेंट मींस व्हाट? सो डिपेंडिंग ऑन द, okay, moisture content is measured by, it is determined by your 2-3 methods, like curl fission method is there, then toluene distillation method is there, and IR spectroscopy is there. तो मॉइस्चर कंटेंट मेजर करने के लिए आप 3 मेथड यूज करते हो. सबसे कॉमन मेथड होता है आपका कर्ल फिशर टाइट्रेशन. ठीक है. दूसरा मेथड होता है टोलिन डिस्टिलेशन मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर, अगर आपका कंपाउंड एयर में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट कितना करता है, उसके बेसिस पे कंपाउंड्स को डिवाइड किया जाता है. ठीक है. सो हाइग्रोस्कोपिक मींस व्हाट? सब्सटेंस व्हिच कैन एब्सॉर्ब द वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. ओके. सो with those substances which used to absorb the moisture from air, they are known as hygroscopic. What do you mean by deliquescence? So they also absorb the moisture from air, but up to the extent that the compound will be get dissolved. Okay. So deliquescence मतलब क्या? Deliquescence, it is a phenomenon of absorption of moisture from the air and to liquefy the powder. तो देखो आप, कोई पाउडर होता है वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा लेकिन वो पाउडर ही रहेगा, मतलब उसमें मॉइस्चर आ जाएगा लेकिन पाउडर ही रहता है. कोई कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, so it can absorb moisture from air up to a extent of, so that it can be liquefied. तो उसको बोलेंगे deliquescence. Okay. Now changes in the moisture level, they causes significantly affect the chemical and physical properties, stability, flowability, compactability of drugs. So you have to study that. Okay. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, देखो. द यूरोपियन फार्माकोपियल टेक्निकल गाइड हैज क्लासिफाइड डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपी इनटू 4 क्लासेस. सो यूरोपियन टेक्निकल गाइड जो होता है, यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड, तो they have classified the hygroscopic compounds in a different category. So in the 4 category based upon the static method. Method क्या है देखो, after storage at a 25 degrees Celsius for 24 hours at a 80% relative humidity. मतलब क्या करना है कि आपको पाउडर देखना है, आपको क्लासिफाई, आपका पाउडर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है या वेरी हाइग्रोस्कोपिक है या फिर डेलिक्वेसेंट है, या आपको डिफाइन करने के लिए आपको उन्होंने एक मेथड दिया है. ये मेथड के अकॉर्डिंगली आपको करना है. सपोज यू हैव टू टेक ए प्री वेड पाउडर, 1 या 2 ग्राम पाउडर लेना है आपको. ठीक है. जो आपको यू हैव टू वेट दैट. जैसे मान लीजिए कि आपने 1 ग्राम पाउडर लिया, एंड आफ्टर यू हैव टू स्टोर दैट पाउडर एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स एट 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर वहां पे उसको रखना है. ठीक है. और नेक्स्ट डे यू हैव टू पाउडर पर फिर से एक बार पाउडर को वेट करना है आपको. नाउ इंक्रीज इन द वेट. अगर आपका कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक है तो क्या होगा? वेट उसका इंक्रीज होगा. ठीक है. वेट उसका इंक्रीज होगा. अभी कितना वेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना वेट इंक्रीज हुआ है, तो उसके बेसिस पे उसका क्लासिफाई करते हैं. ओके. नाउ इफ you have to weigh your powder, keep it for 24 hours at 25 degrees Celsius, 80% relative humidity. Now if, what is meant by slightly hygroscopic? So if increase in the weight of that powder is more than 0.2% weight by weight but less than 2% weight by weight. ठीक है. 0.2% से ज्यादा वेट बढ़ा है उसका लेकिन 2% से कम बढ़ा है, 2% से कम है, so उसको बोलेंगे slightly hygroscopic. So slightly hygroscopic means increase in the weight is less than 2% weight by weight. Now what do you mean by hygroscopic as per the European technical guides, okay, European pharmacopoeia technical guides? So hygroscopic means what? So increase in the weight is
less than 0.2%. Okay, so increase the weight is more than 0.2% but less than 15%. So slightly hygroscopic मतलब क्या, increase in the weight is more than 0.2% weight by weight but less than 2%. यहाँ पे 0.2% से ज्यादा है लेकिन 2% से कम है तो उसको बोलेंगे स्लाइटली hygroscopic. If increase in the weight is more than 0.2% weight but less than 15%, it is known as hygroscopic. ठीक है. Now very hygroscopic, if increase in the weight is more than 15% weight by weight, that is known as a very hygroscopic. Okay. What is meant by deliquescent? So some compound will absorb the water, sufficient water to become a solution, to form a solution. That is known as a deliquescence. So इसके ऊपर GPAT 2019 में as it is question आ चुका है. ठीक है. So you have to remember what is meant by hygroscopic, what is meant by slightly hygroscopic, very hygroscopic and deliquescent ऊपर आ चुके हैं. ठीक है. You have to remember by any mean. आपको पढ़ना है. Good evening, good evening. Okay. ठीक है. Thank you. Good evening to all. Good evening to all. Okay. So following methods are used to measure the hygroscopy. उसमें थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस भी होता है, उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी भी यूटिलाइज किया जाता है. देन ग्रेविमेट्री इज देयर, देन कर्ल फिशर रीजन. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कार्ल फिशर रीजन. कार्ल फिशर रीजन में कितने कंपोनेंट होते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर. इसमें क्या क्या होता है देखो, पिरिडीन होता है इसमें, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें मिथेनॉल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है. ठीक है, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड. तो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं. देखो क्वेश्चन आ चुके हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएजेंट यूज्ड इन द कर्ल रिएजेंट. कार्ल फिशर रिएजेंट का कंपोनेंट्स कितना है देखो, इसमें पिरिडीन होगा, पिरिडीन सॉल्वेंट है. ठीक है, पिरिडीन होगा, उसमें मिथेनॉल यूज करेंगे. सो मिथेनॉल इज देयर, पिरिडीन इज देयर, सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर. ओके, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड. ओके, आयोडीन तो नहीं लेकिन पोटेशियम आयोडाइड होता है. ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट. आपको याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज वेंट ऑफ प्लॉट. सो वेंट ऑफ प्लॉट क्या होता है. सो इफ यू प्लॉट अ मोलर सॉलिडिटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ योर पॉलीमॉर्फ. सो मोलर सॉलिडिटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ पॉलीमॉर्फ्स, डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स का, तो उसको बोलेंगे वेंट ऑफ प्लॉट, वेंट ऑफ प्लॉट्स. ओके, so molar solubility, that is temperature at which solubility and vapor pressure of polymorphs are same. तो polymorphs का vapor pressure and solubility जिस टेम्परेचर पे सेम होता है उसको बोलेंगे मोलर सॉलिबिलिटी. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. ब्रिजिंग सॉल्वेंट मतलब क्या कि ब्रिजिंग सॉल्वेंट इज द सॉल्वेंट यूज्ड टू कन्वर्ट वन पॉलीमॉर्फ इनटू अनदर पॉलीमॉर्फ. हर एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रिजिंग सॉल्वेंट. ठीक है. फाइन पार्टिकल कैल्कुलेशन में आपका बहुत सारा आएगा, मतलब उसमें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके जीपैट के लिए उतना ही बोलूंगा मैं. तो बल्क फ्लो, फॉर्मुलेशन, होमोजेनिसिटी, सरफेस एरिया, कंट्रोल प्रोसेस, वो सब. सो फॉर फाइन पार्टिकल कैल्कुलेशन यू नीड टू study that part by using sieve analysis, light microscopy. Now you can utilize sieve analysis. आप sieve analysis यूज कर सकते हो कब, when the particle size is more than 100 माइक्रोन. कल्टर काउंटर मेथड भी होता है आपका. देन हायक HIAC और हियक सिस्टम जो होता है, दैट इज स्ट्रीम काउंटिंग मेथड. नाइपर में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. नाउ बेट इक्वेशन, it is nothing but the Bate equation is utilized to know the surface area of powder. पाउडर का सरफेस एरिया या फिर पार्टिकल का सरफेस एरिया मेजर करने के लिए आपको बेट इक्वेशन होता है. बेट का लॉन्ग फॉर्म है आपको ब्रोनाउर इमेट टेलर. सो इन दिस इक्वेशन वी यूटिलाइज, और इन दिस मेथड वी यूटिलाइज लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन एट a minus 196 degree Celsius that is allowed to absorb on a powder surface. Okay, now how you can measure the surface area. So 1 nitrogen is equal to 16 angstrom. तो 1 नाइट्रोजन का कितना यूटिलाइज होगा एरिया, 16 angstrom. तो 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 16 angstrom एरिया. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नाइपर में 2-4 बार आ चुका है.
नाउ जीपैट में भी लास्ट ईयर आया था, जीपैट में तो कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो for the particle surface area, okay, for the measurement of powder surface area or particle surface area by adsorption method, मतलब ये बेट इक्वेशन जैसा। सो कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? सो ऑप्शन में एक ऑप्शन था क्वांटासॉर्ब। सो रिमेंबर क्वांटासॉर्ब, दैट इज द apparatus used to measure the powder surface area by using adsorption method, ठीक है। क्वांटासॉर्ब is the apparatus used in the measurement of particle surface area by using adsorption method. Scanning electron microscope to study the surface morphology and texture, okay. To study the surface morphology and texture you need a scanning electron microscopy. अभी अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है आपका या पाउडर है, वो क्या है, कंडक्टिव नहीं है। सो टू मेक अ सुपर कंडक्टिव इट इज गोल्ड प्लेटेड, पार्टिकल्स आर गोल्ड प्लेटेड टू मेक अ कंपाउंड सुपर कंडक्टिव। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी मतलब बल्क वॉल्यूम, ठीक है, ग्राम पर एम एल। ट्रू डेंसिटी क्या होता है? ट्रू डेंसिटी, सो बल्क डेंसिटी माइनस वाइड वॉल्यूम, बल्क डेंसिटी विदाउट वाइड वॉल्यूम, दैट इज नोन एज ट्रू डेंसिटी। वाइड वॉल्यूम मतलब क्या है? सो पाउडर के दो पाउडर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जो एयर होता है, उसको बोलते हैं वाइड्स। तो बल्क डेंसिटी मतलब क्या है? वॉल्यूम, जो भी मास है, मास अपन वॉल्यूम, दैट इज अ बल्क डेंसिटी, बल्क मास अपन बल्क वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी क्या है कि बल्क डेंसिटी माइनस वाइड वॉल्यूम, ठीक है। नाउ और एक होता है आपका टैप डेंसिटी। सो टैप डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी विदाउट वाइड्स, तो वाइड का जो है वो रिमूव किया जाता है बाय डूइंग टैपिंग्स। सो टैप डेंसिटी इज मेजर्ड बाय पोरिंग द known quantity of powder in a graduated cylinder and you have to tap not less than 1000 times। तो आपने एक apparatus भी देखा होगा टैप डेंसिटी मेजरमेंट का, वहां पे सिलेंडर के लिए अरेंजमेंट होता है। तो ये टैपिंग कितना होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो इन द टैप डेंसिटी विच इज डिटरमाइंड बाय पोरिंग द known quantity of powder in a graduated cylinder and tapping is not less than 1000 times, remember। flow properties is flow property is determined by different like compressibility index, angle of reverse, okay। then पाउडर कितने टाइप के होते हैं? आपको पाउडर एक तो फ्री फ्लोइंग होगा या फिर नॉन फ्री फ्लोइंग। नॉन फ्री फ्लोइंग मतलब कोहेसिव पाउडर, राइट। देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? सो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मींस व्हाट? सो इट इज आल्सो नोन एज कार्स इंडेक्स, ठीक है। कॉम्प्रेसिबल, रिमेंबर यहाँ पे याद रखना है आपको, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स मींस व्हाट? कार्स इंडेक्स, और इट इज आल्सो नोन एज कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। सो इट इज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय परसेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी और कार्स इंडेक्स? इट इज कैलकुलेटेड बाय density of that is a true density minus bulk density divided by true density into 100, ठीक है। ये जो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इंटू 100। देखो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड, ओके, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इंटू 100, that is known as the percent compressibility or Car's index। देखो if Car's index of powder is up to if Car's index of powder is 5 to 12, the flow is excellent। if it is between 12 to 16, it is good, okay। if it is between 18 to 21, possible। अगर आपका 23 से 35 है तो पुअर फ्लो, मोर देन 40 वेरी वेरी पुअर फ्लो। सो आपको एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यू याद रखना है। सो कार्स इंडेक्स if powder is less than 12 or if it is between 5 to 12, so excellent flow is there, ये क्या रखना है। 12 to 16 गुड फ्लो इज देयर, और आपको मोर देन 40 क्या है? पुअर फ्लो, वेरी वेरी पुअर फ्लो, आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउसनेस रेशो। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, व्हाट इज हाउसनेस रेशो? टैप्ड बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पोर्ड बल्क डेंसिटी, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी। तो टैप्ड बल्क डेंसिटी divided by poured bulk density, or in a simple language tap density minus divided by bulk density। Now Hausner's ratio is also another measure of flow property of powder,
कि पाउडर का फ्लो कैसे हो सकता है, गुड, एक्सलेंट या फिर फ्री फ्लोइंग, कोहेसिव। उसका अनदर मेजर क्या है, हाउसनस रेशो, ठीक है। सो इफ हाउसनस रेशो वेरीज फ्रॉम 1.2 to 1.6, 1.2 है दैट इज मीन बाय फ्री, दैट इज मीन बाय फ्री फ्लोइंग पाउडर, अगर 1.6 है तो कोहेसिव पाउडर। So if Hausner's ratio is between 1 to 1.11, then it is a having excellent flow. If it is between 1.12 to 1.18, good. तो वो यहाँ पे भी आपको सब वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है. At least you have to remember the excellent, good and poor. So if Hausner's ratio is between 1 to 1.11, it is excellent flow. If it is between 1.12 to 1.18, it is good flow. And if it is more than 1.60, that is a very poor flow. So you have to remember this. Now what do you mean by angle of repose? So again, it is not a precise measurement of flowability, but commonly used to evaluate the flow properties. What is angle of repose? It is nothing but the tan theta. Tan theta is equal to 2d. फॉर्मूला याद रखो, पूछा है ऑलरेडी, ठीक है। tan theta is equal to 2h divided by d. 2h क्या है, हाइट ऑफ पाइल, एंड d क्या है, डायमीटर ऑफ पाइल, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल के एग्जाम में किया होगा, प्रैक्टिकल या फिर आपका फिजिकल फार्मेसी में जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें किया होगा, ठीक है। सो पाउडर आपको फनेल से नीचे गिराना है पेपर के ऊपर, यू हैव टू मेक वन पाइल, after that you are measuring the height of that pile, you are measuring the diameter of that pile, okay. So you are calculating the angle of repose. So it is again a measure of flow property. So tan theta is equal to 2h divided by d, okay. So if angle of repose of powder is less than 30, or if the angle of repose of powder is 25 to 30, it is an excellent flow. Then if it is a 31 to 35, good flow. 36 to 40, fair flow. 41 to 55, 45. If angle of repose of powder is more than 66, very poor flow, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2-3 वैल्यू रखना है। If angle of powder is angle of repose of powder is less than 25, it is excellent, ठीक है। less than 30, excellent, यहाँ पे याद रखो less than 30 excellent, ठीक है। 30 to 40 याद रखो fair flow और good flow. more than 60 very poor, ठीक है। So again you can characterize the fine particle different by using different method. Sieving method is there, ठीक है। optical microscopy is there, centrifugal method is there, color counter method is there, okay. So by using sieving, which are known as ओवन sieve, जो ओवन sieves होते, you can measure the particle size in a range of 20 to 1.25 lakh micron. Sieving में electro etch tissue है, अगर if sieves are made up by electro etching process, then you can measure the particle size in a range of 5 to 120 micron. If sieves are perforated plates, so you can measure a particle size in the range of 1000 to again 1,25,000 micron. Optical microscopy, you can measure the particle size in between 0.5 to 150 micron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सबसे कम साइज मेजर कर सकते हैं, तो यू कैन मेजर द पार्टिकल साइज इन अ रेंज ऑफ 0.001 to 5 माइक्रोन। याद रखो, जो सबसे कम वाला है वो याद रखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्वेश्चन आ चुके हैं। By using centrifugal sedimentation, you can measure a particle size in a range of 0.01 to 5 micron. Culture counter method, you can use 1 to 200 micron. ये important है। Now यहाँ पे कुछ examples दिए, compressibility and flowability of some commonly used pharmaceutical additives. तो देखो यहाँ पे देखो, so talc is having 49% compressibility. So talc is having very poor flow. talc का जो होता है poor flow होता है because it is having compressibility index 49. So यहाँ पे याद रखो, जैसे ये सेलुटेप जैसे माइक्रोस्टाइन सेलुलोजिन, सेलुटेप मतलब ये सेलुलोज का डेरिवेटिव है। So in you will have 11% compressibility, so it is
इट हैज एक्सलेंट फ्लो, ठीक है। सो बाद में आता है आपका सोलिबिलिटी एनालिसिस। ओके, सोलिबिलिटी एनालिसिस यू कैन in the solubility analysis it is done by different methods like determination of pK, pH, temperature dependence, dissolution, product stability, solubilization mechanism। तो इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय को सॉल्वेंट, हाउ यू कैन मेजर द pKa of drug, ठीक है। So first one is the determination of pKa. So pKa is nothing but the dissociation constant. It is measured by different methods. So ionized drug is a lipid soluble, you know that. Unionized drug is a lipid soluble. Ionized drug is a water soluble. Okay. Now it can be, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू मेजर द pKa of drug, ऐसा, ठीक है। So measurement of pKa or determination of pKa is done by Henderson-Hasselbalch equation, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए फॉर बेसिक कंपाउंड pH इज इक्वल टू pKa प्लस आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डिवाइड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। ये एग्जैक्टली अपोजिट है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डिवाइड बाय आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। परसेंटेज आयोनाइजेशन इज गिवन बाय आपको ये, ठीक है। नाउ आयोनाइजेशन और सॉरी dissociation constant is measured by different method like titrimetry is there, potentiometry is there and spectroscopy is there। जैसे आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि व्हेन तो उसमें एक पॉइंट आता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, व्हेन देयर इज अ हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है देयर इज नथिंग बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो इन द टाइट्रीमेट्री जहां पे आपका हाफ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। नाउ फॉर वीकली एसिडिक द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ pK is less than 3, okay, and basic drug has a pK in range of 8 to 9, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो फॉर pK डिटरमिनेशन यूवी से भी होता है, spectral shift in UV can give you idea regarding the pKa, okay, and preferred method is nothing but the potentiometric titration। Now देखो, if there is a 10-degree change in the temperature there is a 5-fold time change in the solubility। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। So effect of temperature on solubility, so if you increase 10 degrees temperature, अगर कोई solution है solubilize कर रहे हो उसका, अगर 10 डिग्री से आपने हीट बढ़ा दिया तो उसको 5 times solubility उसका बढ़ जाएगा most of the time। if there is a 10 degree change in the temperature there is a 5 times change in the dissociation constant, ये देखा है अपन ने, ठीक है। Now remember for weakly acidic drug if pKa is less than 8, weakly acidic drug है आपका, pKa is less than 8 है, so drugs such as phentoin, ethosuximide वगैरह, ठीक है। and for weakly basic drug pH less than pKa less than 5, okay, so weakly acidic weakly basic drug वो क्या है, they remains unionized throughout the GIT and they are completely absorbed। ये क्वेश्चन GPAT में आया था लास्ट ईयर। So weakly acidic weakly basic drug जिनका pK लेस देन क्या है 8 है, और weakly basic drug जिनका pK, ठीक है, pK मोर लेस देन 5 है, और जो weakly acidic drug है उनका pK मोर देन 8 है। तो ऐसे ड्रग क्या होते हैं, कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं GIT में एंड दे आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब। वीकली एसिडिक ड्रग जिनका pKa 3 to 5 होता है, so weakly acidic drug having pKa 3 to 5 like aspirin, ibuprofen, they are unionized at a gastric pH। तो देखो एसिड में इनका अनआयोनाइज्ड फॉर्म रहेगा और वहां से वो एब्सॉर्ब हो गई, तो एस्पिरिन इज एब्सॉर्ब इन द स्टमक। एस्पिरिन का एब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है, स्टमक से होता है। ibuprofen is also there। so again वीकली बेसिक ड्रग, जो वीक बेसिक ड्रग होता है उसका अगर pK 5 to 8 है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, क्लोरोक्विन एंड ऑल दैट, सो दे रिमेंस अनआयोनाइज्ड एट द बेसिक pH। जो वीकली बेसिक ड्रग है वो मोस्टली आपके इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होते हैं, क्यों, वहां पे उनका
आयोनाइजेशन नहीं होता है, वो दे रिमेन्स इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म. वीकली एसिडिक ड्रग दे रिमेन्स अनआयोनाइज्ड इन द एसिडिक फॉर्म. ओके, तो वीकली एसिडिक ड्रग जिनका पीएच पीके रेंज होता है 3 to 5, तो वो स्टमक से एब्सॉर्ब होंगे. जो वीकली बेसिक ड्रग है जिनका पीके है 5 to 8, वो स्टमक इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होंगे. और जो वीकली एसिडिक ड्रग जिनका पीके मोर देन 8 है and weekly basic drugs जिनका PK less than 5 है, so they remains unionized throughout the GIT and they are completely absorbed. Strongly acidic drug जो होता है वो absorb नहीं होता, like क्रोमिलिन सोडियम and strongly basic drug जो होता है like erythromycin papaver, they are very less solubility, they are ionized throughout the GIT. जो strong acid होता है, strong base होता है, so they will remain ionized throughout the GIT and they are poorly absorbed. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुके हैं. ठीक है, ये मेथड्स कौन से होते हैं? मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पीके, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड होता है. ठीक है, देन बहुत सारे मेथड्स होते हैं. टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, सोलिबिलिटी मेजरमेंट के लिए मेथड कितने हैं, स्टेबिलिटी के लिए, सोलिबिलिटी के लिए जो मेथड्स. तो इसमें आपको इतना याद रखना है, मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पीके. सो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड होता है, उसके बाद में आपका टाइट्रीमेट्रिक मेथड होता है, उसके बाद में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है. Then solubility, by using solubility also you can measure the pKa of drug. ये solubilization, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is meant by solubilization? So how to increase the solubility of poorly soluble drugs? क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. ठीक है, देखो यहाँ पे by using co-solvents, like ethanol, propylene glycol, glycerin, they are known as a water soluble co-solvent. So enhancement of solubility of poorly soluble drugs और salts. So अगर आपका ड्रग पुअरली सोल्युबल है, सोलिबिलिटी कम है उसका, तो उसका सोलिबिलिटी आपको इंक्रीज करना पड़ता है. सो बाय यूजिंग को सोलवेंट लाइक इथेनॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जिलेटिन. Of solubility of your poorly soluble non-electrolyte by using water soluble solvent like ethanol, propylene glycol, glycerin, that is known as a co-solvency. The phenomenon is known as a co-solvency. इसके ऊपर GPAT 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. So what is co-solvency? Enhancement of solubility of poorly soluble non-electrolyte by using water soluble solvents known as a co-solvent, and the phenomenon is known as a co-solvency. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ सोलिबिलिटी टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो आपका कंपाउंड कितना सोल्युबल है, वेदर योर कंपाउंड इज अ फ्रीली सोल्युबल और पोरली सोल्युबल और सोल्युबल, वो कैसे मेजर करेंगे. ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ योर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व पार्ट ऑफ सोल्वेंट. मतलब याद रखो, एक एक पार्ट, या मान लीजिए कि 1 मिलीग्राम आपका सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है. ठीक है, नाउ इफ लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू सोल्यूबलाइज द 1 पार्ट ऑफ सोल्वेंट. अगर सॉल्वेंट का एक पार्ट भी लग रहा है, मतलब 1 ml solvent is required, less than 1 ml solvent is required to dissolve 1 mg of drug, then it is a very soluble. If 1 to 10 ml of solvent is required to solubilize only 1 milligram of drug, known as a freely soluble. If 10 to 30 ml of solvent is required to solubilize 1 milligram of drug, known as a soluble. If 30 to 100 parts of solvent is required to solubilize 1 milligram of drug, it is known as sparingly soluble. ठीक है, ये important है. Then if 100 to 1000 parts of solvent is required to solubilize only 1 part of solvent or 1 mg of drug, then it is a slightly soluble. If 1000 to 10,000 parts of solvent are required to solubilize a 1 milligram of drug, then it is known as a very slightly soluble. And if more than 10,000 parts of solvents are required to only 1 part of solute, known as a practically insoluble. ठीक है, तो पार्ट याद रखो या मिलीग्राम में याद रखो. जैसे सॉल्वेंट है, 1 मिलीग्राम से कम सॉल्वेंट लग रहा है आपके 1 मिलीग्राम ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए, तो उसको बोलेंगे फ्रीली सोल्युबल. 1 से 10 ml लग रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्रीली सोल्युबल. ठीक है, सोल्यूट का अमाउंट जो है 1 मिलीग्राम वो कांस्टेंट होगा, बस आपका सॉल्वेंट का अमाउंट वेरी होना है यहाँ पे, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट वही होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट सोलिबिलिटी टर्म्स आर डिफाइंड. सो यहाँ पे याद रखना है, वेरी सोल्युबल किसको बोलेंगे, लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड. फ्रीली सोल्युबल 1 से लेकर 10 तक पार्ट लगता है सॉल्वेंट्स का.
Soluble किसको बोलेंगे? 10 to 30 parts of solvent is required to solubilize only one part of drug. Sparingly soluble 30 to 100. ठीक है, 100 to 1000 बोलेंगे slightly soluble, 1000 to 10,000, 1000 to 10,000 उसको क्या बोलेंगे? Very slightly soluble. More than 10,000 parts of solvent is required to solubilize only one part of drug. It is known as practically insoluble. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। तो एक बार नाइपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्वेंट स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट एंड देयर सॉल्वेंट स्ट्रेंथ। सो ग्लिसरॉल का होता है 0.5, इथिलीन ग्लाइकोल का होता है 1, इथेनॉल का होता है 1.5 एंड डीएमएफ और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल एस्टामाइड उसका होता है 4। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। डाइमिथाइल एस्टामाइड क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर भी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। इथेनॉल भी लिटिल बिट पोलर है, सेमी पोलर बोल सकते हो। बेंजीन क्या होता है आपका? नॉन पोलर होता है। क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर। तो स्टेबलाइजेशन एंड कोसोलेंसी, जैसे कोसोलेंसी क्लियरिंग अपन ने देखा है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो डेल्टा H, delta H, yes, that is known as heat of solution. Delta H, yes, known as heat of solution. If heat is released or absorbed when a 1 mole of solid is dissolved in the large quantity of solvent, तो जब जो जो हीट है, heat released or heat absorbed when a 1 mole of solid is dissolved in the solvent, that is known as a heat of solution. Heat of solution किसको बोलेंगे? अगर कोई एक मोल है आपके ड्रग का या पाउडर का, वो डिसॉल्व करना है आपको सॉल्वेंट में, तो ड्यूरिंग solubilization whether heat is absorbed or heat is released, that is known as a heat of solution. ठीक है, मोस्टली द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H is positive, heat is absorbed. Solubility increased with the increasing the temperature. ठीक है, solute like lithium chloride and other HCl salt gets ionized on the upon dissolution. तो जो आयन जिनका आयनाइजेशन होता है तो उसमें इवल होता है, so that is a delta H is negative. ये पार्ट आप एक्चुअली थोरली पढ़ना है आपको। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम। ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम, देखो ये जो होता है ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। वो क्या होता है? तो it is nothing but the concentration of drug in a organic solvent or to the, it is the ratio of concentration of or amount of drug in a organic solvent or organic phase to the amount of drug in a water phase. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में कितना कितना अमाउंट है उसको बोलेंगे पार्टीशन कोएफिशिएंट. So partition coefficient is the ratio of drug concentration in the solvent to the drug concentration in the aqueous solvent. ठीक है, बाद में डिटेल में आपको पढ़ लो एक शॉर्ट में. लिपिंस्की रूल ऑफ 5, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. ए ड्रग विल हैव पुअर ओरल एब्सॉर्प्शन. ड्रग का एब्सॉर्प्शन कम होगा कब? जब पहला इफ एक्सीड्स वन और मोर वैल्यूज ऑफ लिपिंस्की रूल ऑफ 5. तो लिपिंस्की ने क्या किया? 5 पॉइंट्स बोले. अगर वो 5 पॉइंट्स से वैल्यू ज्यादा है उसका, तो उसका ओरल एब्सॉर्प्शन कम होगा. नाउ इफ लॉग पी वैल्यू ऑफ कंपाउंड इज ग्रेटर देन 5, और कोई कंपाउंड का लॉग पी वैल्यू मतलब क्या? पार्टीशन कोएफिशिएंट अगर किसी का 5 से ज्यादा है, so if partition coefficient of your compound is more than 5, it will have less solubility. If molecular weight of compound will have more than, molecular weight of compound is more than 500 Dalton, so it will be lesser absorbed. If compound has a more than 5 hydrogen bond donors group, like ammonia hydroxyl group, so again it is poorly absorbed. If there is a more than 10 hydrogen bonds acceptor, कंपाउंड में अगर आपके कंपाउंड का पार्टीशन कोएफिशिएंट 5 से ज्यादा है तो उसका एब्सॉर्प्शन कम होगा.
मोलिकुलर वेट आपके कंपाउंड का अगर ज्यादा है 500 डेल्टन से तो उसका भी एब्सॉर्प्शन कम होगा। इफ आपके कंपाउंड में अगर 5 हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों से मतलब 5 अमीनो ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ग्रुप है तो उसका भी एब्सॉर्प्शन कम होगा, मोर देन 5। इफ देर आर मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, जो जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ग्रुप अगर 10 से ज्यादा है तो उसका क्या होगा, एब्सॉर्प्शन पुअर होगा। दीज आर नोन एज रूल ऑफ 5, लिपिंस की रूल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में आता है आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एज पर द बायोफार्मास्यूटिक्स डिजाइनिंग ऑफ novel drug listing, तो what are the ideal properties of candidate for a novel drug listing? तो वो बोला है किसने, लिपिंस्की ने, रूल ऑफ 5, ठीक है। सो डिसोल्यूशन तो आपको मालूम होगा, व्हेन ड्रग गोज इनटू द सॉल्यूशन दैट इज नोन डिसोल्यूशन। सो factors, there are a lot of factors which affect the dissolution. I'm not going in the detail. So Noisy-Whitney equation याद रखना है आपको। Noisy-Whitney equation is related with the dissolution, okay, dissolution rate. So dissolution rate of tablet or dissolution rate of capsule or dissolution rate of your API, that is given by Noisy-Whitney equation. Question आ चुका है इस solubility terms, ये ऑलरेडी अभी हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है constant dissolution surface area apparatus, okay. So Wood's apparatus, in this apparatus surface area of tablet will not change during the dissolution. इसको बोलते हैं रोटेटिंग डिस्क apparatus, Wood's apparatus। इसमें दो टाइप का apparatus होता है, फर्स्ट वन इज नोन एज रोटेटिंग डिस्क apparatus and second one is known as static disk apparatus। इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट क्या होता है? सो इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। The rate of dissolution of pure API when parameter like surface area, temperature, agitation, stirring speed is kept constant, pH। तो ये intrinsic dissolution rate क्या होता है? The rate of dissolution of pure API in the milligram per minute per centimeter square when a parameter like surface area, temperature, agitation or stirring speed, pH, ionic strength kept constant, उसको बोलते हैं intrinsic dissolution rate। देखो आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ NaCl, एक बार क्वेश्चन आया व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो इट इज अ 0.15। व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ योर वाटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया नाइपर में, सो इट इज 80। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, याद रखो। मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है सो इट इज अ काइंड ऑफ योर it is a kind of your incompatibility of your excipient with the API। जो आपका API ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड आपका जो एडिटिव है या डाइल्यूएंट है उसके साथ में उसका रिएक्शन आपके टैबलेट की सरफेस के ऊपर ब्राउनिंग कलर आता है, ब्राउन कलर है। सो दैट इज अ मिलर रिएक्शन व्हेन ए हाइड्रस लैक्टोज विल react with the amine containing drugs to form a reaction product known as a furfural so that will impart a brown color on the tablet surface, so that is a Maillard reaction and it is also known as a browning reaction। Now surface color measurement of tablet is done by diffused reflectance spectroscopy or ट्राई स्टिमुलस रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड रिमेंबर ओनली हाइड्रस फॉर्म ऑफ लैक्टोज विल गिव यू मिलर्ड रिएक्शन, अनहाइड्रस लैक्टोज विल नॉट गिव यू मिलर्ड रिएक्शन। हाइड्रस लैक्टोज जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है हाइड्रस लैक्टोज, तो वही क्या करेगा, मिलर्ड रिएक्शन देगा विद द अमाइन कंटेनिंग ड्रग, अनहाइड्रस नहीं देगा। आप बोलेंगे सर स्प्रेड हाइड लैक्टोज वो भी देता है, ठीक है। सो ओनली अनहाइड्रस लैक्टोज विल नॉट शो मिलर्ड रिएक्शन, याद रखो। And what is the product? That is a 5-hydroxymethyl furfural, okay, or furfuraldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, that is nothing but the product in the Maillard reaction। now इसमें क्या होता है कि एक इसमें पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड भी आपको नजर आता है, that's why sometimes you can call
So product of Miller reaction is nothing but the peptide. ठीक है, स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसिड कौन सा होता है? HPLC. HPLC इज द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसिड. क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, बाकी स्टेबिलिटी में हाइड्रोलिसिस वगैरह. ठीक है, व्हाट इज कोल्ड टेम्परेचर टर्म्स क्वेश्चन आता है. व्हाट इज मीन बाय कोल्ड टेम्परेचर? टेम्परेचर रेंज बिटवीन 2 to 8 इज अ कोल्ड. टू ओके, 8 to 25 इज अ कूल टेम्परेचर. ठीक है, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मतलब कोल्ड टेम्परेचर है. 8 से लेके 25 तक है मतलब कूल टेम्परेचर है. ठीक है, 35 टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर. ठीक है, वार्म टेम्परेचर किसको बोलेंगे? 25 to 40. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज वार्म टेम्परेचर एज पर आईपी? टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 40. वार्म टेम्परेचर. हॉट मतलब क्या है? मोर देन 40. सो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करते हैं. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक. सो टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टल सरफेस स्टडी करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करते हैं. इसमें एक इक्वेशन होता है ब्रैग्स इक्वेशन. सो शार्पिक इंडिकेट द प्योर क्रिस्टल. इसका थ्योरेटिकल बेसिस क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. दैट इज नोन एज द ब्रैग्स इक्वेशन. ये इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं जीपैट में. ठीक है, सो एक्सरे व्हाट इज द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन? सो दैट इज द ब्रैग्स इक्वेशन. n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. सो ग्लास टेम्परेचर क्या होता है? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर at which polymorph, okay, so polymorph will be converted into rubbery state to glossy state. It is the temperature of polymer at which it get converted from glossy state to rubbery state. देखो आप पॉलीमर को अगर हीट करोगे तो वो आपका उसका मेल्टिंग हो जाएगा और उसमें स्टेट आता है. ग्लॉसी स्टेट मतलब सॉलिड. ठीक है, रबरी स्टेट मतलब लिटिल बिट लिक्विड. सो it is nothing but the temperature of the polymer at which it gets converted from glassy state to rubbery state and vice versa. There is a glass transition temperature. नाइपर में आता है क्वेश्चन. बल्क डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम. टैप डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय टैप वॉल्यूम. टैप कितना करना है? 1000 टैप. कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स बल्क डेंसिटी माइनस टैप डेंसिटी बल्क वॉल्यूम माइनस टैप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम इनटू 100. दैट इज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स. हाउसनेस रेशियो क्या होता है? बल्क वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टैप वॉल्यूम. ठीक है, ये वैल्यूज अपन ने देखे. फिर से यहाँ पे वही सेम वैल्यूज है. यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ आपको और चाहिए सेशन. अभी क्या होगा? सो इफ यू वांट मोर सेशन वी विल टेक अ टैबलेट के बारे में देखते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में. आणि थोडंसं फास्ट करा. टैबलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फास्ट कमेंट में टाइप कीजिए यस, तो मैं आपको टैबलेट भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टैबलेट. ठीक है, सभी आ जाओ. मतलब जो पिल्लू वाले हैं वो भी आ जाओ और जो बाबू सोना वाले हैं वो भी आ जाओ. सबका डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीपैट के लिए. फ्री में मिल रहा है आपको तो ले लो. मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, इसके पहले मैं लाइव नहीं किया था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए. तो टैबलेट चैप्टर अपन ले लेंगे. फटाफट आपके दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है कि चल रहा है, बिक रहा है, बाजार खुला है, आ जाओ लूट लो. ठीक है, यहाँ पे बाजार चालू है, लूट लो, माल है. और पुष्पा भाव ने तो पहले ही बोल के रखा है. क्या? पुष्पा भाव ने बोल के रखा है कि अपने पास जो माल है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है और ऐसी क्वालिटी और कहीं भी नहीं है. तो जब माल अपने पास है दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलने का.
स्टडी करने का, क्वालिफाई करने का, रैंक लाने का. So what is tablet? Tablet is nothing but the a compressed dosage form. Tablet is nothing but the unit dosage form made by compression or molding. Definition मालूम होना चाहिए क्या है. यूनिट डोसेज फॉर्म है, मेड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट देखो. टैबलेट दोज विच आर टेकन ओरली. जो ओरली टैबलेट लेते हैं उसकी कितने टाइप है. या फिर आप टैबलेट दोज टैबलेट विच आर प्लेस्ड इन द ओरल कैविटी. टैबलेट्स फॉर अदर रूट्स. ठीक है. टैबलेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट प्लेस्ड इन द cavities, and tablet for other routes. Now tablet में आता है compressed tablet, double compressed tablet, delayed tablet, chewable tablet, sugar coated tablet, film coated tablet. सर compressed tablet, double compressed, delayed tablet, chewable tablet, sugar coated tablet. ठीक है. तो इतने सारे टैबलेट का टैबलेट इंजेस्टेड बाय ओरली. तो चेवेबल टैबलेट है, इट इज नॉट इंजेस्टेड, इट इज चिव्ड इन द माउथ कैविटी. तो चेवेबल टैबलेट क्या होता है, ये इंजेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे चिविंग कहते हैं उसका. एंड रिमेंबर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट इन द चेवेबल टैबलेट इज अ मैनिटॉल. मैनिटॉल इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है. और उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन. मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं उनको मालूम होता है कि मैनिटॉल यूज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कई टेस्ट सीरीज पे देखा होता है, टेस्ट सीरीज लगाया होता है, उसको मालूम होता है कि मैनिटॉल यूज कर रहे हैं. लेकिन क्यों, बिकॉज मैनिटॉल हैज अ नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन. सर फालतू बडबड लावली राव मूर्ख माणसं. चेवेबल टैबलेट्स में मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है आपका मैनिटॉल. So that mannitol, why it is most commonly used? Because it has a negative heat of solution. When mannitol containing tablet you used to chew in the mouth, so you get a cooling sensation. So that's why mannitol is used the most commonly diluent in the chewable tablet. याद रखो, शुगर कोटेड टैबलेट होता है, फिल्म कोटेड टैबलेट होता है. ठीक है. टैबलेट प्लेस्ड इन द ओरल कैविटी में बक्कल टैबलेट होता है. यू हैव टू प्लेस दैट बक्कल टैबलेट इन अ बक्कल पाउच मेड बाय चिक्स एंड टीथ. जो चिक्स होता है आपका, टीथ होता है, उसके बीच में जो कैविटी आता है उसमें आपको क्या करना है, टैबलेट प्लेस करना है. दैट इज अ बक्कल टैबलेट. नाउ सबलिंगुअल टैबलेट यू हैव टू प्लेस बिलो द टंग. सबलिंगुअल टैबलेट का आप प्लेस करना है बिलो द टंग. मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन सा यूज किया जाता है सबलिंगुअल. नाइट्रोग्लिसरीन इज मोस्ट कॉमनली formulated in the form of sublingual tablet. Nitroglycerin, that is a drug used in the treatment of angina pectoris. So anti-anginal drug जो होता है nitroglycerin, that is mostly formulated in the form of sublingual tablet. Okay. Now sublingual tablet or sublingual tablet will bypass the first pass pit. यहाँ पे आपको याद रखना है. Now trouches, what do you mean by trouches? What do you mean by dental cone? Dental cone and trouches, they are also placed in the oral cavity. ठीक है. डेंटल कोन्स, अगर कोई आपका दांत निकल लिया, अगर दांत में सड़न आ गई, सो इफ देयर इज अ extraction of your tooth, so what remains empty socket. Okay, so there is a chance of getting infection. So mostly antibacterial compounds or antibacterial drug containing tablet which are formulated to place in that empty socket after tooth extraction, known as dental. टैबलेट फॉर अदर रूट्स, रेक्टल टैबलेट होता है, वजनल टैबलेट होता है, ट्रांसडर्मल इम्प्लांट होता है. वजनल टैबलेट्स दे आर आल्सो नोन एज अ सपोजिटरीज. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ टैबलेट कितना होता है. कॉम्प्रेस टैबलेट सिंपली मेड बाय compression using tablet diluent and your compression machine. Now multiple compressed tablet, so to avoid the incompatibilities. ठीक है. आपके दो ड्रग है, सर
So we'll डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन 100% आ जाएगा. सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट द compressed tablet made by simple compression by using your tablet compression machine or tableting machine. Now multiple compressed tablet. सब्लिमिनल टैबलेट का आप यूज करना है बिलो द टैब. मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन सा यूज किया जाता है सब्लिमिनल? नाइट्रोग्लिसरीन इज मोस्ट कॉमनली formulated in the form of subliminal tablet. That is a drug used in the treatment of angina. So anti-anginal drug जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन, that is mostly formulated subliminal tablet. और subliminal tablet now multiple compressed tablet means what? To avoid the incompatibilities within a tablet. So suppose you want to formulate two drugs in a one tablet and those two drugs are incompatible, so you have to formulate in the form of multiple compressed tablet or multi-layer tablet. Now एक क्वेश्चन आया था tablet within a tablet within a tablet, tablet within a tablet और tablet within a tablet within a tablet. तो अगर tablet within a tablet है तो उसको बोलेंगे bilayer tablet. if tablet within a tablet within a tablet मतलब तीन tablet एक में क्या अंदर है उसको बोलेंगे multi-layer tablet. Okay. Now delayed release मतलब क्या? To bypass the stomach, delayed release, to release the drug into intestine. Okay, sustained release means to get a sustained action of your drug for longer time. शुगर कोटेड टैबलेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. शुगर कोटेड टैबलेट किसके लिए यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज डन इन केस ऑफ multivitamin preparation. Sugar coating of tablet is done in case of multivitamin preparation, and in case of sugar coating of tablet 50% weight will be increased. So sugar coating of tablet means you have to apply several coats of sugar on the tablet, so there is an increase in the weight up to 50%, 50 to 100%, you have to remember. Then film coating means a thin film is there on a tablet surface to mask the taste. So main purpose of film coating of tablet is nothing but the mask the taste. Taste masking is the most important, or taste masking is the more taste masking is the main purpose of your film coating of tablet. Now next आता है आपका chewable tablets. So in the chewable tablet, to mean to chew in the mouth cavity. Now in case of chewable tablet, mostly antacid formulations are there. आपने देखा होगा, you might have seen aspirin tablet, that is analgesic, and antacids tablets. Gelicyl MPS tablet you might have seen. Gelicyl MPS tablet देखा होगा आपने. So that is a kind of chewable tablet. तो वो क्या है? antacid. So menthol is used commonly as a sweetener. Now buccal tablet means it is held in the pouch between cheeks and teeth. Sublingual tablet angina pectoris में जो nitroglycerin यूज किया जाता है, that is a formulated in the sublingual. Lozenges and pouches क्या होता है? Lozenges means they are nothing but the cuff drop. So lozenges क्या होता है? Cuff drop. They are intended to exert a local effect in the mouth in case of throat infection. Dental cones क्या होता है? To prevent the bacterial growth after the tooth extraction. उस सॉकेट में उसको डालना. Now vaginal tablets and tablet implants. Remember, so in case of vaginal tablet, they should have pH exactly like a vaginal fluid, और उसका शेप एंड साइज भी अलग होता है. Now what do you mean by effervescent tablet? So tablet tend to dissolve in the water by releasing the carbon dioxide. So they usually consist of a citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है,
देखो इपरवेशन टैबलेट में क्या क्या आता है, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. Now sodium bicarbonate will react with the citric acid, tartric acid, and will release the carbon dioxide. Now that carbon dioxide will mask the bitter taste of your drug, okay, or that may mask the flavor. So mostly again formulated by for antacids. तो सिस्टमिक एंटासिड जो होते हैं वो इपरवेशन टैबलेट में बनाए जाते हैं. और डिस्पेंसिंग टैबलेट, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हाइपोडर्मिक टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचुरेट. लास्ट ईयर में जो डीआई का एग्जाम हुआ था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. टैबलेट known as a hypodermic tablet. So what is hypodermic tablet? Tablet mean to make a solution for water, a solution for tablet dissolved in the sterile water for injection, known as a hypodermic tablet. So tablet dissolved in the water, that is sterile water for injection, known as hypodermic tablet. Now dispensing tablet means क्या? So dispensing tablets, they are made to dissolve in a specific volume of water which contain water soluble ingredient or components. Tablet triturate क्या होता है? So they are nothing but the tablet which are molded. ये compression से नहीं बनाते, ये molding से बनते हैं, साचा होता है उसका. And solvent use करते हैं alcohol. ये various excipient used in the tablet manufacturing आपको मालूम होगा. Fillers और diluent, they are used to increase the bulkiness of tablet. जैसे अपन ने talc use करते हैं, mannitol use करते हैं, sucrose use करते हैं, या फिर सेल गए, या फिर आपका बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं. लैक्टोज है, अनहाइड्रस लैक्टोज, स्प्रेड लैक्टोज, डाइबेसिक कैल्शियम, सॉर्बिटॉल, कैल्शियम फॉस्फेट. सो दीज आर नथिंग बट डाइल्यूएंट्स और फिलर. उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द बल्क ऑफ योर टैबलेट. जैसे मान लीजिए आपके टैबलेट में एपीआई है 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम, तो उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है. टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, तो यू कैन नॉट टेक 5 मिलीग्राम टैबलेट, वो आपके हाथ में भी नहीं आएगा. ठीक है. सो टू इंक्रीज द बल्कनेस, the diluents are used. Binders means what? To cause the to increase the adhesiveness. So acacia, cellulose, gelatin वगैरह ये सब क्या है? Binders है. Disintegrate means what? To break down the tablets. So remember disintegrate: starch, cellulose, alginate, polyvinyl pyrrolidine, cross-linked carmelose. इसको बोलते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट, क्रॉस लिंक्ड कार्मेलोज और क्रॉस फ्लूइड, दैट इज अ सुपर डिसइंटीग्रेट. ग्लाइडेंट क्या होता है? ग्लाइडेंट टू इम्प्रूव द फ्लो फ्रॉम हॉपर टू द डाई कैविटी. तो इसमें सिलिका डेरिवेटिव, कोलाइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाल्क, कॉर्न स्टार्च, ये आएगा. एंटी एडियरेंट क्या होता है? दैट इज अ मैग्नीशियम स्टेरेट एंड टाल्क. सो यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट एडिटिव्स एंड देयर एग्जांपल एंड देयर रोल. ठीक है. सो ये सब एक्चुअली मेरे बुक में दिया है, आप बाद में पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ पढ़ के बोलने में कोई नहीं है. यहाँ पे याद रखो EHPMC, EHPMCP, माइक्रो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, EHPMCP. So that is known as the most commonly film former in the film coating of tablet. क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2020 में. HPMCP or HPMC. HPMC मतलब hydroxy propyl methyl cellulose. That is the most commonly used as a film former in the film coating of tablet. You have to remember, question आ चुका है GPAT. Microcrystalline cellulose is also known as AV cell. Microcrystalline cellulose जो होता है उसका ट्रेड नेम होता है AV cell. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. पॉलीविनल पर्लोडोन जो होता है PVP, that is a control release excipient. स्टार्च क्या है? स्टार्च होता है मल्टीपर्पज डाइल्यूएंट. कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग एजेंट्स, तो इतने सारे बाइंडिंग एजेंट यूज होते हैं.
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये सुपर डिसइंटीग्रेट, इसके ऊपर बहुत सुना चुके। सो रिमेंबर द सुपर डिसइंटीग्रेट, दे विल डिसइंटीग्रेट द टैबलेट विद इन सेकंड्स। कुछ सेकंड में वो टैबलेट जब पेट में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, उसको ब्रस्टिंग हो जाए, तो दे आर नोन एज सुपर डिसइंटीग्रेट। दे आर यूज्ड इन द इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स और फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स होता है या फिर इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स होता है, तो उसमें ये सुपर डिसइंटीग्रेंट्स दे आर यूज्ड। सो यहाँ पे ट्रेड नेम क्रॉस कार्मेलोज, ओके। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रॉस कार्मेलोज? एगडीसोल, प्राइमिलोज, सोलोटैप। So all these are the cross carbamylose, agdisol, primulose, solitap. They are a cross-linked cellulose derivative. Swelling, they will swell 4 to 8 times when they will come in contact with the GIT fluid. Okay. Then crosspoidone and collidone. ये क्या है? Polyvinyl pyrrolidone. यहाँ पे याद रखना। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, एक्सपोटैप, प्राइमोजेल, ठीक है। ये तीन जो है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, एक्सपोटैप, प्राइमोजेल, दे आर क्रॉस लिंक्ड स्टार्चेस। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे आता है, फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सुपर disintegrant which belongs to starch or which is having nature of starch। तो स्टार्च का डेरिवेटिव कौन है सुपर डिसइंटीग्रेंट, या फिर सेलुलोज का सुपर डिसइंटीग्रेंट डेरिवेटिव कौन है? सो यहाँ पे याद रखना है, क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज का डेरिवेटिव होता है क्रॉस कार्मेलोज सेलुलोज, एगडीसोल, प्राइमोलोज, सोलोटैप। क्रॉस लिंक्ड पोइडोन का डेरिवेटिव क्रॉस पोइडोन एंड कोलिडोन, दे आर सुपर डिसइंटीग्रेंट। स्टार्च के डेरिवेटिव देखो, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, एक्सपोटैप, प्राइमोजोल, ये सब क्या है? सुपर डिसइंटीग्रेंट। अल्जीनिक एसिड इज आल्सो क्रॉस लिंक्ड सुपर डिसइंटीग्रेंट। क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, देखो, नेचुरल सुपर डिसइंटीग्रेंट, natural super disintegrant, that is nothing but the soya polysaccharide is a natural super disintegrant. Calcium silicate is a inorganic super disintegrant, calcium silicate। यहाँ पे ये सुपर डिसइंटीग्रेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, उसका मैकेनिज्म, कमेंट, ये सब मेरे बुक में है ऑलरेडी, यू कैन रीड। ग्रेनुलेशन में आता है वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन एंड ऑल इन वन ग्रेनुलेशन टेक्निक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ड्राई ग्रेनुलेशन में स्लजिंग डिस्लजिंग होता है, स्लजिंग डिस्लजिंग ऑकर्स इन द ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन इज आल्सो नोन एज द कंप्रेशन ग्रेनुलेशन, यहाँ पे याद रखो। वेट ग्रेनुलेशन में आपको बाइंडिंग एजेंट और बाइंडर यूज करना है सॉल्यूशन, बाद में रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर्स और ये एपरेटस से आपको ग्रेनुलेशन करना है। नाउ ऑल इन वन मेथड ग्रेनुलेशन में आता है Wurster technique. So you might have seen the एयर सस्पेंशन मेथड फॉर कोटिंग। तो उसमें एयर सस्पेंशन कोटिंग जो होता है और एयर सस्पेंशन मेथड फॉर कोटिंग, उसमें तीन टाइप का होता है, देखो, टॉप स्प्रे, बॉटम स्प्रे एंड टेंजेंशियल स्प्रे। तो टॉप स्प्रे जो है उसको बोलेंगे टॉप स्प्रे, बॉटम स्प्रे एंड टेंजेंशियल स्प्रे। तो तीन टेक्निक होता है उसमें। जो बॉटम स्प्रे होता है उसको बोलते हैं रस्टर टेक्निक, और जो टेंजेंशियल स्प्रे होता है उसको बोलते हैं ग्लैड एयर टेक्निक। आपको ये तो मालूम होगा, बॉटम स्प्रे वाला रस्टर टेक्निक मतलब टेंजेंशियल स्प्रे जो है वो है ग्लैड एयर टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ग्रेनुलेशन टेक्निक होता है, आपको मालूम हो गए, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन टेक्निक। दो टाइप का होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, जो फाइनल ब्लेंड होता है आपका, फाइनल ब्लेंड मतलब ड्रग प्लस एडिटिव्स वगैरह सब मिक्स करके आपको ग्रेनुल बनाना है, ठीक है। सो पहले क्या है कि दो मेथड है उसमें। एक मेथड देखो, final blend, you have to pass through roller mill, you will get a compacts or flake, then you have to break these compacts or flakes by using different machines, that is a mixing and then mixing and sizing, you will get desired size granules। ये होगा एक। दूसरा मेथड होता है, so by using your final blend you have to make a large size tablet, that is known as a large size tablet or is known as a sludge by specially designed tableting machine।
The process of making powder into large size tablet known as sludging and breaking of that large size tablet into smaller granules known as a desludging. So क्वेश्चन आ चुका है sludging desludging occurs in which, तो यहाँ पे ड्राई ग्रेनुल ये टैबलेट टूलिंग इंपॉर्टेंट है. टैबलेट टूलिंग मतलब क्या? सो डिफरेंट सेट ऑफ डाइज एंड पंचेस. तो टैबलेट टूलिंग कितना टाइप का होता है? डी टूलिंग, बी टूलिंग, डीपी टूलिंग, बीबी टूलिंग. ये 4 टाइप का टैबलेट टूलिंग होता है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस ऑफ पंचेस. जो पंच होता है अपर पंच लोअर पंच, उसका साइज क्या है, डायमीटर क्या है उसका. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको टैबलेट का साइज मिल जाएगा. ठीक है, सो डाइज एंड पंचेस, सेट ऑफ डाइज एंड पंचेस, दे आर नोन एज टैबलेट टूलिंग. कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का. डी टूलिंग, बी टूलिंग, डीपी टूलिंग, बीबी टूलिंग. ठीक है, सो आउट ऑफ दैट रिमेंबर डी टूलिंग विल गिव यू लार्जेस्ट साइज टैबलेट. डी टूलिंग का डायमीटर कितना होता है? ज्यादा होता है. तो 25 बाय 25 mm का टैबलेट आपको मिल जाएगा. सो लार्जेस्ट साइज टैबलेट इज ऑब्टेन बाय डी टूलिंग. क्वेश्चन आ चुका है. सो डी टूलिंग इज द लार्जेस्ट टूलिंग. उसके बाद में आता है आपका स्मॉलेस्ट टूलिंग. कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट टूलिंग होता है आपका बीबी टूलिंग. बीबी टूलिंग इज द स्मॉलेस्ट टूलिंग. डी टूलिंग इज द लार्जेस्ट. याद रखना है आपको. टैबलेट पंचिंग मशीन एंड इट्स पार्ट, बाकी का तो आपको याद हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है व्हाट इज रोल ऑफ काम ट्रैक. सो काम ट्रैक इज यूज्ड टू गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस. अपर एंड लोअर पंचेस दे विल गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस. गाइडिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ पंचेस, दैट इज द रोल ऑफ काम ट्रैक और काम हैंडल. ओके, यू हैव टू रिमेंबर. टरेट क्या होता है? टरेट इज नथिंग बट द a part of machine where upper punch and lower punch they are fixed together. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. देखो यहाँ पे अपर पंच लोअर पंच फिक्स किए एक सर्कुलर डिस्क में, उसको बोलते हैं टरेट. ये काम ट्रैक का रोल होता है टू गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस, टू कंप्रेस द पाउडर इनटू टैबलेट. बाकी रोल आपको मालूम हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे याद रखो. टैबलेट साइज एंड शेप विल बी डिसाइडेड बाय डाई कैविटी. जो डाई कैविटी होता है उसका कितना अमाउंट ग्रेनुल का फिल होता है. एंड वन मोर क्वेश्चन एक बार आ चुका है. सो टाइम स्पेंट बाय टैबलेट इन डाई कैविटी, कि टैबलेट डाई कैविटी में कितना देर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम. सो टैबलेट स्पेंड टाइम स्पेंट बाय टैबलेट इन डाई कैविटी नोन एज अ ड्वेल टाइम. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. तो बाकी ये सब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है. तो साइज शेप तो मैटर नहीं करता, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मैटर नहीं करता. थिकनेस इज इंपॉर्टेंट, देन हार्डनेस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, फाइब्रिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, कंटिन्यूअस फॉर्मिटी. ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के लिए. ठीक है, पहला होता है आपका आपका पहला टेस्ट है आपका थिकनेस. हाउ यू कैन मेजर थिकनेस? थिकनेस इज मेजर्ड बाय दिस apparatus known as a वर्नियर कैलिबर. एकदम शॉर्ट में ले रहा हूँ इसको आपको. वर्नियर कैलिबर इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ टैबलेट. और लिमिट क्या है? ±5%. मान लीजिए आपका टैबलेट का लेंथ है आपका 10 mm, तो मैक्सिमम परसेंटेज डेविएशन ऑलरेडी ±5%. अगर आपका थ्योरेटिकली आपके टैबलेट का साइज है 10 mm, तो मैक्सिमम 10 mm ±5 mm का ही डेविएशन होना चाहिए. They are measured by taking 10 tablets. So 10 tablets are used to take 10 tablets are used to measure the thickness of tablet. Tablet कितना लेना है? 10. Apparatus कौन सा है? वर्नियर कैलिबर. ठीक है, लिमिट क्या है? पॉइंट ±0.5%. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है हार्डनेस टेस्ट. सो हार्डनेस टेस्ट मतलब क्या? हार्डनेस इज आल्सो नोन एज द क्रशिंग स्ट्रेंथ. याद रखो, हार्डनेस इज आल्सो नोन एज क्रशिंग, आल्सो known as a resistant to friability. ये 3 वर्ड्स याद रखो. रेजिस्टेंट टू फ्लाइबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, आर नथिंग बट द हार्डनेस. सो फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट और फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर द टैबलेट इज नथिंग बट द हार्डनेस. तो apparatus देखो, इट इज अ फंक्शन ऑफ डायफिल वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड कंप्रेशन फोर्स. तो आपके डाई कैविटी में कितने ग्रेन्यूल्स है, अमाउंट क्या है उसका, और फोर्स ऑफ कंप्रेशन, उसके बेसिस के हार्डनेस बनता है. अगर डायफिल वॉल्यूम वॉल्यूम कम है आपका, मतलब जो डाई है उसमें
ग्रैनुल्स का वॉल्यूम कम होए तो आपने कंप्रेस किया तो ऑब्वियसली उसका हार्डनेस क्या आएगा, कम आएगा। अगर डायफिल वॉल्यूम बहुत फुल हो गए और कंप्रेशन फोर्स भी ज्यादा है तो आपका हार्ड टैबलेट आएगा, ठीक है। सो हार्डनेस एंड थिकनेस, जो हार्डनेस जो है एंड थिकनेस जो है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो हार्डनेस होता है, थिकनेस होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हार्डनेस बढ़ा तो थिकनेस कम हो जाएगा, थिकनेस बढ़ा तो हार्डनेस कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ बाइंडर और लुब्रिकेंट आल्सो अफेक्ट द हार्डनेस। अगर बाइंडिंग एजेंट ज्यादा यूज किया तो हार्डनेस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लिमिट कितना होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। कन्वेंशनल टैबलेट के लिए हार्डनेस लिमिट होता है 2.5 to 5 kg पर kg सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर कन्वेंशनल टैबलेट हार्डनेस लिमिट इज 2.5 to 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर डिस्पर्सिबल और चेबल टैबलेट इज 2.25 to 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। For extended release tablet, it is a 5 to 7.5 kg per centimeter square. लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, फिर से बोल दो। टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर, अगर आपको पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर तो आप फट से जाओ सर मॉन्स्टर एंड फाइजर। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा रहता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर एक्सेप्ट मॉन्स्टर एंड फाइजर। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर, मॉन्सेंटो आता है, आपको फाइजर आता है। सो इन द फाइजर यू यूज मैकेनिकल पिलर। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, यूज ऑफ मैकेनिकल पिलर, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है। यूरे का टेस्टर होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्टर होता है, मॉन्सेंटो टेस्टर होता है, उसमें स्क्रू ड्राइव्स द रॉड फ्रॉम वन साइड, ठीक है। स्क्रू होता है, स्क्रू यूज टू मूव द रॉड फ्रॉम वन साइड, tablet is placed in a tablet is fixed on another end. Shelugner tester जो होता है, Shelugner tester, two rods or anvils come together to break the tablet is the mechanism. Two rods or two anvils come together to break the tablet is the mechanism involved in the Shelugner tester. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, नाइपर में, सब में। रॉकवेल, ठीक है, विकर्स, नूप और अदर टेस्टर। डिजिटल हार्डनेस टेस्टर इज आल्सो देयर। स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर इज देयर, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैकेनिकल, ठीक है, ये यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई कर के ऊपर बेस्ड होता है। सो एयर पंप डैमेज इज द फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फ्राइबिलिटी इज नोन एज अ रेजिस्टेंट टू हार्डनेस। अनदर मेजर ऑफ हार्डनेस दैट इज फ्राइबिलिटी। कॉमनली यूज्ड एप्रेटस होता है रोचे टाइप ऑफ फाइब्रेटर एंड ड्यूरिंग द फाइबिलिटी टैबलेट्स आर अंडरगो combined process of abrasion and impact, ठीक है, याद रखो। नाउ ऑपरेटर्स का आरपीएम होता है 25 आरपीएम, टोटल मिनट्स होता है 4 मिनट, टोटल रोटेशंस होता है 100 रोटेशन, ठीक है। विदिन ड्यूरिंग ईच साइकिल, जो ऑपरेटर्स में ड्यूरिंग ईच साइकिल टैबलेट गेट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 6 इंचेस। ये आपको याद, प्रोबेबिलिटी के ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछेंगे आपको। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स, आरपीएम कितना है, टाइम कितना है, टैबलेट का कितने हाइट से ड्रॉप होता है, ठीक है, लिमिट कितना है। सो कितना टैबलेट लेना है, हाउ मेनी टैबलेट यू हैव टू सिलेक्ट फॉर फैबिलिटी टेस्ट, कितना टैबलेट लेना है आपको। सो इफ टैबलेट इज वेइंग लेस देन 650 milligram, sorry, if tablet is weighing 650 milligram और मोर, अगर टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम है या फिर उससे ज्यादा है तो 10 टैबलेट लेना है। सो इफ टैबलेट वेट इज 650 milligram or more, you have to take 10 tablets. If tablet weight is less than 650 milligram, then you have to take tablet weight corresponding to 6.5 gram. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, कितने टैबलेट लेना है प्रोबेबिलिटी के लिए, वो डिपेंड करता है आपके टैबलेट के वेट के ऊपर। अगर आपके टैबलेट का वेट 50 मिलीग्राम है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको लेना है 10 टैबलेट्स। अगर आपके टैबलेट का वेट अगर 650 मिलीग्राम से कम है तो आपको लेना है टैबलेट वेट करस्पॉन्डिंग टू 6.5 ग्राम। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। रैपिड डिवीजन का मतलब क्या है, वही तो होता है ना। नहीं तो फिर बोलने वाले तो क्या भी, मतलब आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, अगर करना है जीपेट क्वालिफाई तो करो 150 एमसीक्यू सॉल्व, करना है जीपेट क्वालिफाई तो करो 100 एमसीक्यू सॉल्व।
तो फिर उसमें आता है मैराथन, फिर आता है महासंग्राम, फिर आता है आगाज, अंजाम। अबे कैसा आगाज, कैसा अंजाम? अर्जुना, युधिष्ठिर, ठीक है, उसमें युधिष्ठिर, अर्जुना, सभी जो कैरेक्टर्स है महाभारत के, उन्होंने यहाँ पे जीपैट में रख दिए। अभी मैंने रिसेंटली एक डायलॉग भी सुना है, जीपैट को फ्लावर समझे क्या, फायर एम है। जीपैट को फ्लावर समझे क्या, फायर एम है। मतलब रिसेंटली मैंने ये डायलॉग कहा पड़ा, मुझे मालूम नहीं कि जीपैट को फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं, फायर एम है। अरे कोई पागल थोड़ी है कि जीपैट को, आपको जीपैट एग्जाम को फ्लावर क्यों समझेगा कोई? जीपैट एग्जाम है तो एग्जाम को एग्जाम ही समझेगा ना। तो वो डायलॉग मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि जीपैट को फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं, मैं फायर है। अरे ऐसा क्यों? मतलब जीपैट को कोई पागल आदमी ही फ्लावर समझेगा ना। जीपैट इज नथिंग बट द एग्जाम, तो उसको एग्जाम ही समझिए ना। मतलब आपको लुभाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, महासंग्राम, रण संग्राम, बैटल ग्राउंड। अबे आप जीपैट का एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो या फिर आप लड़ने जा रहे हो? यहाँ पे बैटल ग्राउंड का क्या रोल है? और फिर वो थंबनेल, मतलब ऐसे करके तलवारें दो। बाबा बाबा बाबा, तौबा तौबा तौबा, ज्यादा मत बुलाओ मुझसे। ओके, सो लिमिट क्या होता है टैबलेट? आरपीएम कितना है, टाइम कितना है टैबलेट का, कितने हाइट से ड्रॉप होता है, लिमिट कितना है, तो कितना टैबलेट लेना है, हाउ मेनी टैबलेट यू हैव टू टेक फॉर टैबलेट टेस्ट, कितना टैबलेट लेना है आपको। तो इफ टैबलेट इज बेइंग लेस देन 6 मिलीग्राम, so if tablet is weighing 650 मिलीग्राम और मोर, अगर टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम है या फिर उससे ज्यादा है तो 10 टैबलेट। तो ये टैबलेट की वेट इज 650 मिलीग्राम और मोर, ओके, टैबलेट का लिमिट कितना होना चाहिए, फाइबिलिटी का लिमिट। सो याद रखो, नॉट मोर देन 0.5 to 1%। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ चुका है, Probability test is official in a United States Pharmacopoeia, but it is not official in the Indian Pharmacopoeia and British। तो probability जो टेस्ट होता है वो ऑफिशियल किसमें है? यूएसपी में ऑफिशियल नहीं है। ओके, यूएसपी में ऑफिशियल है लेकिन आईपी और बीपी में ऑफिशियल नहीं है। तो फिर उसमें आता है मैराथन, फिर आता है महासंग्राम, फिर आता है आगाज, अंजाम, अंजाम, अर्जुना, नेक्स्ट टेस्ट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus, उसके स्पेसिफिकेशंस। डिपेंड को फ्लावर समझे क्या, फायर है। मतलब रिसेंटली मैंने ये डायलॉग कहा पड़ा, मुझे मालूम नहीं जीपैट को फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं, फायर है। अरे कोई पागल जीपैट को, आपको जीपैट एग्जाम को फ्लावर क्यों समझेगा? जीपैट एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम ही समझेगा ना। वो डायलॉग मैंने पढ़ा था। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट याद रखो, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट उसमें बास्केट एंड रैक apparatus इज यूज्ड। सो उसका स्पेसिफिकेशन देखो। सो नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, अप एंड डाउन। सो नंबर ऑफ अप एंड डाउन साइकिल्स पर मिनट ऑफ योर डीटी apparatus, that is a 28 to 32 cycles per minute. So apparatus will move up and down 28 to 32 cycle per minute. So 6 tablet are tested. Out of that, okay, 1 or 2 tablet if fails, then you have to repeat the test by taking additional 12 tablets. And not less than 16 out of 18 should disintegrate to pass the test। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे स्क्रीन कौन सा होता है? सो स्क्रीन होता है 10 मेश। ये 10 मेश स्क्रीन याद रखना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अप एंड डाउन मूव साइकिल्स 28 to 32। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे पूछा था, सर आपके पास कोई टीम नहीं है, या फिर आप टीम नहीं है आपके पास टीम, मतलब उसने कहीं देखा होगा कि हम हमारी इतनी टीम है, हमारे मतलब होता है ना कि
बोलते हैं कि हम मेरे पास 10 लोगों की टीम है, हमारे पास 20 लोगों की टीम है, हमारे पास 100 लोगों की टीम है। तो मुझे भी ऐसा एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, सर आपके पास में कोई टीम नहीं है, आप अकेले ही पढ़ाते हो? तो मैंने उसको एक जवाब दे दिया फिर उसके लैंग्वेज में, बेटा झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, ठीक है, शेर अकेला आता है। और एक क्वेश्चन आ चुका है, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना बिजनेस वालों, मैं आपकी क्लासेस ही बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं मुझे क्रॉस कभी मत करो। नेक्स्ट डिसल्टेशन टेस्ट एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको डिसल्टेशन टेस्ट एप्रेटस, उसके स्पेसिफिकेशन। Now next text is nothing but the very important part is there, disintegration test limit as per the Indian, as per the pharmacopoeia, disintegration test limit for the pharmacopoeia, ठीक है। हर एक टैबलेट टाइप के लिए डीटी लिमिट कितना होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसके ऊपर, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, डिसइंटेशन टेस्ट लिमिट एज पर द फार्माकोपिया। सो फॉर अनकोटेड टैबलेट व्हाट इज द लिमिट, 15 मिनट्स, फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट इट इज 30 मिनट, फॉर शुगर कोटेड 60 मिनट, डिस्पर्सिबल टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेट विद इन 3 मिनट, फॉर एफर्वेसेंट टैबलेट 5 मिनट, entry coating tablet should not disintegrate in a 2 hours in the HCl and should disintegrate in a 1 hour in a 6.8 pH phosphate buffer. Soluble tablet should disintegrate within a 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पे याद रखो शुगर कोटेड टैबलेट का होता है 60 मिनट, दो बार पूछा है व्हाट इज द डिसिंटेशन टाइम लिमिट फॉर शुगर कोटेड टैबलेट, 60 मिनट, ठीक है। फिल्म अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट, फिल्म कोटेड टैबलेट का होता है 30 मिनट, शुगर कोटेड 60 मिनट, डिस्पर्सिबल टैबलेट का होता है 3 मिनट। क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज द डिसिंटेशन टाइम लिमिट फॉर डिस्पर्सिबल टैबलेट। मुझे भी ऐसा एक बच्चे ने पूछा था, सर आपके पास कोई आप आपके नहीं पढ़ाते हो? मैंने उसको एक जवाब दे दिया, बेटा शुरू में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, शेर अकेला। What is the DT limit for entry coated? Entry coating मतलब क्या? They are meant to release the drug in the intestine. Intestine में release करने के लिए बनते हैं, ठीक है? So that entry coated tablet should not disintegrate in the, and that's why should not disintegrate in a 2 hours in the HCl and should disintegrate in the alkaline pH, that is 6.8 phosphate buffer pH. तो दो घंटे डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए और बाद में, ठीक है, एसिड एनवायरनमेंट में डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए और बाद में अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो ब्रेक हो जाना चाहिए। सो सोल्यूबल टैबलेट का होता है डीटी टाइम 3 मिनट्स। तो एक चार्ट है, इसके ऊपर कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एक स्नैपशॉट लेना है या लिख लो या फिर ये मेरे बुक में ही दिया है, पढ़ लो, ठीक है। अगेन डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट में टाइप्स ऑफ एपरेटस इंपॉर्टेंट है। जो वेसल होता है, वेसल कहाँ से बनता है, बोरोसिलिकल ग्लास का, उसका कैपेसिटी कितना होता है 1000 ml, ठीक है। शाफ्ट कहाँ से बनता है, स्टेनलेस स्टील 316, ये ओके। और उसमें होबलिंग नहीं होना चाहिए। होबलिंग मतलब क्या, कि उसमें ओबल नहीं, स्मूथली उसका आरपीएम होना चाहिए, ओबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, बात करते हैं होगा आपको 37 प्लस माइनस 5, ठीक है। और पैडल का टाइप ऑपरेटर्स होता है, इसमें भी सेम उसके जैसे होता है। यहाँ पे एक याद रखो सिंकर्स, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, सिंकर्स दे आर यूज टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम फ्लोटिंग, ठीक है। कुछ टैबलेट में क्या होता है देखो,
वहाँ पे सस्टेन रिलीज टैबलेट जब होता है तो उसमें बहुत सारे सेलुलोज पॉलीमर वगैरह यूज करते हैं। दैट सेलुलोज पॉलीमर दे यूज टू सिंक इन द दे यूज टू फ्लोट इन द मीडियम। अगर टैबलेट अगर मीडियम में फ्लोट हो गया तो उसका डिसोल्यूशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो प्रिसाइज नहीं आएगा। सो टू सिंक द टैबलेट इन अ वेसल यू नीड अ सिंकर्स। सिंकर्स आर मेड ऑफ पेट्रोलियम वायर। ठीक है, ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन अगेन लिमिट। देखो पहले आपको 6 टैबलेट टेस्ट करना है। यू हैव टू टेस्ट 6 टैबलेट। सो using dissolution test apparatus, so each and every tablet should dissolve, and the dissolve amount, that is a percentage of D. So limit क्या है? First you have to take 6 tablet and dissolve amount D plus 5%। तो पहले स्टेज में होना चाहिए आपका D plus 5%। जैसे मान लीजिए आपका लेवल क्लेम होता है 80%। ठीक है, तो आपके पहले स्टेज में डिसोल्यूशन आना चाहिए 80 plus 5%, that is 85%, known as stage 1. So if stage 1 fails, then you have to go for additional 6 tablet in a stage 2. Stage 2 में लिमिट आना चाहिए आपका average of 12 tablets including S1 S2 should be equal to or more than D, and not more than single unit, or no single unit should be D minus 15%. So if any tablet fails, again you have to take by taking 12 more tablets. Now average of 12 tablets S1 S2 S equal to or more than D, and not more than 2 tablets should be D minus 15%, and no unit or no single unit should be D minus 25%. देखो यहाँ पे डिसोल्यूशन में पहले स्टेज में आपको 6 टैबलेट लेना है। 6 टैबलेट लेंगे, आप टेस्ट करेंगे। लेवल क्लेम कितना है आपका 80, तो आपका डिसोल्यूशन आना चाहिए 80 प्लस 5, 85। अगर टैबलेट फेल हो गया तो आपको सेकंड स्टेज में जाना है बाय टेकिंग मोर 6 टैबलेट। सो एवरेज ऑफ all 12 should be equal to or more than D, and not more than no single tablet should be D minus 15%. ये हो गया सेकंड लिमिट। If tablet fails, you have to go in the third stage. Okay, now third stage में लिमिट होना चाहिए आपका D, average of S1 S2 S3 is equal to or more than D, not more than 2 tablet should be D minus 15%, and no single tablet should be D minus 25%. या सिंपल S1 में लिमिट होता है D plus 5%, S2 में लिमिट होता है D minus 15%, S3 में लिमिट होता है D minus 25%. That's it. एक सस्टेन रिलीज उसके लिए भी लिमिट होता है एसिड स्टेज बफर स्टेज, सेम लिमिट उसके लिए भी है। एक यूएसपी डिसोल्यूशन टाइप एपरेटस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 7 यूएसपी टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस। टाइप 1 को बोलते हैं बास्केट, टाइप 2 को बोलते हैं पैडल, टाइप 3 को बोलते हैं सिलेंडर, 10 टाइप 4 कौन सा होता है? फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 पैडल और डिस्क, टाइप 6 जो होता है वो रोटेटिंग सिलेंडर होता है, टाइप 7 क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग डिस्क होल्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो एज पर यूएसपी टाइप 1 इज अ बास्केट, एज पर यूएसपी टाइप 1 इज अ बास्केट, एज पर बीपी ईपी आईपी। ठीक है, बीपी ईपी आईपी के अकॉर्डिंगली बास्केट होता है टाइप फर्स्ट, यूएसपी के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना यूएसपी, बीपी एंड ईपी। जो पहले तीन है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस यूएसपी, बीपी, ईपी, टाइप 1 apparatus is a basket, and as per IP टाइप 1 is a pedal। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइप 2 भी सेम होता है इनमें। सो आई यूएसपी बीपी एंड ईपी, टाइप 1 इज बास्केट, टाइप 2 इज अ पैडल, एज पर आईपी एग्जैक्टली अपोजिट। टाइप 1 इज अ पैडल, टाइप 2 इज अ बास्केट। ठीक है, तो ये 7 apparatus आपको याद रखना है। अगेन टाइप 1 इज अ बास्केट, टाइप 2 इज अ पैडल, टाइप 3 इज अ reciprocating cylinder, type 4 is a flow through cell, type 5 is a pedal over disc, type 6 is a rotating cylinder, type 7 is a reciprocating disc holder। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये टेबल देखो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिड टेबल है, मेरे ही बुक में मिलेगा आपको। टाइप 1 apparatus क्या होता है? बास्केट। ठीक है, वो किसके लिए यूज करते हैं? च्यूबल टैबलेट एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट। टाइप सेकंड apparatus होता है पैडल टाइप ऑफ apparatus, तो उसमें वो किसके लिए यूज करेंगे? ठीक है, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज टैबलेट एंड सस्पेंशन।
टाइप 3 एपेटाइटिस होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, उसमें यूज करते हैं इसके लिए च्यूएबल टैबलेट के लिए, कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए। टाइप 4 होता है फ्लो थ्रू सेल, इट इज यूज टू स्टडी डिसोल्यूशन ऑफ एपीआई। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। टाइप 4 एपेटाइटिस फ्लो थ्रू सेल इज यूज टू एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, एपीआई, ग्रैनुल्स, माइक्रोपार्टिकल्स एंड इम्प्लांट्स। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है बेटो। हाँ ठीक है, तो याद रखो पिल्लू बाबू सोना, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। पिल्लू वाले, बाबू वाले, सोना वाले, ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल, ठीक है। टाइप 5 apparatus is nothing but the pedal over disc used for transdermal. 6 is also rotating cylinder used for transdermal. तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, देखो पूछा है which apparatus dissolution test apparatus is used for transdermal patches. So याद रखो pedal over disc, rotating cylinder. Now last में आता है reciprocating holder, that is used for control release non disintegrating and disintegrating oral and implants tablet. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आता है वेट वेरिएशन टेस्ट। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर योर जीपैट एंड अदर एग्जाम्स, ओके, टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिस्टम। व्हाई इट इज what is the inference of this weight variation test to ensure the uniformity of dosage। कि आपने 10 टैबलेट लिए, आपका लेवल के में 20 मिलीग्राम, तो हर एक टैबलेट में 20 मिलीग्राम टैबलेट 20 मिलीग्राम ड्रग ही होना चाहिए, दैट इज नोन एज डोसेज यूनिफॉर्मिटी। सो यू हैव टू वेट 20 टैबलेट इंडिविजुअली, ओके, रैंडमली आपको 20 टैबलेट लेना है, यू हैव टू take a weight of each and every single tablet. After weighing 20 tablet, you have to take average, and your tablet passes the weight variation test if not more than 2 tablets weight deviate from the average weight of tablet percentage then shown in the below table। भी ये टेबल इंपॉर्टेंट है, देखो as per IP and BP, as per IP BP limit क्या है, देखो if your tablet weight is 80 milligram, percentage deviation already allowed is 10%। ठीक है, क्या करना है वेट वेरिएशन टेस्ट में, आपको 20 टैबलेट लेना है, randomly calculate the average weight of 20 tablet, not more than 2 tablets weight should deviate from the average weight by more than percentage shown in the below। ये लिमिट दिया है, इससे ज्यादा 2 टैबलेट का एवरेज वेट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब 20 टैबलेट ले लिया आपने, चेक किया, एवरेज वेट आया और 2 टैबलेट का वेट एवरेज वेट से ज्यादा आया, तो वो फेल हो गई। ठीक है, नाउ वेट वेरिएशन लिमिट फॉर टैबलेट एज पर द डिफरेंट फार्मा एनपीपी के अकॉर्डिंगली। if 80 milligram weight is there of tablet, then 10% deviation is allowed। 82 to 50 7.5% deviation, more than 250 5% deviation। तो कोई यहाँ पे वेट जितना बढ़ेगा डेविएशन उतना कम होगा, वेट जितना कम होगा डेविएशन उतना बढ़ेगा। एज पर यूएसपी अगर आपके टैबलेट का वेट है 130 मिलीग्राम और लेस, देन 10% डेविएशन इज अलाउड। अगर 132 टू 324 7.5% डेविएशन। अगर आपके टैबलेट का वेट है 324 मिलीग्राम, 5% टैबलेट परसेंटेज डेविएशन इज 5%। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, बहुत इजी होता है। ठीक है, एज पर आईपी एंड बीपी 80 मिलीग्राम अगर है और लेस है तो 10% डेविएशन, 82 टू 50 है तो 7.5% डेविएशन, मोर देन 250 है तो 5% डेविएशन। और वही लिमिट आपको लिए अप्लाई करना है, बस टैबलेट का वेट अलग है। यहाँ पे यूएसपी के अकॉर्डिंगली टैबलेट वेट इज 130 मिलीग्राम और लेस, then 10% deviation। if tablet weight is around 132 to 324 7.5%, and if tablet weight is more than 324 mg
5% डेविएशन इज अलाउड है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सबने मुझे गुड इवनिंग कहा है, थैंक यू वेरी मच। और सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, सबको थैंक यू। ठीक है, वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए देखो, आपके जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए वहां पे मेटलर बैलेंस होता है, मेटलर बैलेंस होता है। वहां पे आपको वन बाय वन टैबलेट का वेट लेना है, और जब 20 टैबलेट हो गए तो वो वहां पे उसका प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम में जाके ही आपको 20 टैबलेट वेट करना है वन बाय वन। बाद में आपको एवरेज भी आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, परसेंटेज डेविएशन भी आएगा, सब कुछ रेडीमेड है, आपको सिर्फ करना है। देखो एक चीज याद रखो, आप जितना नॉलेज लेते हो उसका ज्यादा से ज्यादा 10%, 15% आपको इंडस्ट्री में यूज होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, वहां पे गधे चाहिए, गधे। इंडस्ट्री वांट्स गधे। वहां पे फ्रेमवर्क में ही काम करना है आपको, फ्रेमवर्क सेट किया है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। फ्रेमवर्क सेट है, उसके अकॉर्डिंग टू आपको काम करना है। तो मतलब क्या, जैसे होता है ना गधा, गधे का काम क्या होता है, उसके पीठ के ऊपर आप बोझ लाद दो और उसको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली उसके डेस्टिनेशन जो है वो आप पे जाके रुकेगा। मतलब गधा ही तो है ना। फार्मेसी इंडस्ट्री में वर्क, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो जो होते हैं फार्मेसी के बच्चे, वो सब क्या है, गधे है अकॉर्डिंगली। मतलब उनको सिर्फ पर्टिकुलर काम ही करना है, फ्रेमवर्क सेट होता है। मतलब क्या, जैसे कोई एचपीएलसी के ऊपर एनालिसिस कर रहा है, उसका काम फिक्स है, उसको करना क्या है, ये प्रोग्राम फिक्स है, उसको वही टैबलेट बैच लेना है, वही कॉन्सेंट्रेशन लेना है, वही सॉल्यूशन लेना है, उसको सब मेंशन है एसओपी में, अकॉर्डिंग टू एसओपी करना है। मतलब क्या, आपको करना क्या है, सिर्फ करना है आपको, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, आपको सिर्फ करना है। बस वही जब आप R&D में काम करते हो तो वही पे थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है आपको। सो वेयर ओनली यू कैन एक्सप्रेस योर नॉलेज। जब आप R&D में जॉब करते हो, वहाँ पे कुछ लिबर्टी मिलती है, वहाँ पे आप अपना स्किल नॉलेज एक्सप्रेस कर सकते हो। बाकी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में काम करो तो वही काम करना है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। क्वालिटी कंट्रोल में वही करना है, डिसोल्यूशन सीयू करना है, या फिर ऐसे करना है, या फिर आरएस करना है, वही चार टेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट। याद रखो, डेक्सट्रोज इज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट, इट्स ट्रेड नेम इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द ट्रेड नेम ऑफ डेक्सट्रोज, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड समटाइम्स डेक्सट्रोज इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट टू अवॉइड द मिलर रिएक्शन इन प्लेस ऑफ स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, ठीक है। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज का डायरेक्टली कंप्रेसिबल फॉर्म होता है सुपर टैब। सुपर टैब इज अ ट्रेड नेम ऑफ स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। फास्ट फ्लो लैक्टोज जो होता है दैट इज अ नॉन हाइग्रोस्कोपिक। एमडेक्स जो होता है दैट इज अ एमडेक्स, और सेलुटाप दैट इज अ हाइड्रोलाइज्ड स्टार्चेस। देखो ट्रेड नेम पूछता है आपको, हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड स्टार्चेस, एमडेक्स, ठीक है, एमडेक्स, सेलुटैप। देखो डायरेक्टली कंप्रेसिबल सुक्रोज का कितना ट्रेड नेम है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल सुक्रोज में आता है शुगर टैप, उसमें 90% सुक्रोज होगा, 7 to 10% इनवर्ट शुगर होगा, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। डाईपैक में होता है 90% सुक्रोज एंड 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रेज। न्यू टैप में होता है 95% सुक्रोज, 4% इनवर्ट शुगर, ठीक है। स्टार RX1500, इसके ऊपर क्वेश्चन आया जीपैट 2020 में, जाके पेपर देख लो, अगर नहीं मिला तो मुझे जूते से मारो, कोई दिक्कत। ये स्टार RX इज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च। DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट है। DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ट्रेड नेम होता है एविसेल। ये क्वेश्चन जीपैट 2019 में आ चुका है। ये यहाँ पे स्टार आरएफ का क्वेश्चन आ चुका है, एविसेल का क्वेश्चन आ चुका है, सबका मतलब ठीक है, सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज में दो टाइप होता है आपका, एविसेल PH101 इज अ पाउडर फॉर्म, PH102 इज अ ग्रेनुल फॉर्म। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, PH101 102। ठीक है, एक्सिपिएंट यूज्ड इन द कंट्रोल रिलीज टैबलेट। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कौन से है, हाइड्रोफोबिक कौन से है, पीएच डिपेंडेंट पॉलीमर कौन से है, तो वो सब कुछ नहीं लेता मैं, इंपॉर्टेंट जो है आपका वो लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच डिपेंडेंट पॉलीमर, या फिर उसको बोलते हैं एंट्री कोटिंग पॉलीमर। सो यहाँ पे एंट्री कोटिंग पॉलीमर कितने हैं, सेलुलोज एस्टेट थैलेट कैप, कैप जो है वो गया है एंट्री कोटिंग पॉलीमर है। तो या फिर सेलुलोज डेरिवेटिव उसके आगे थैलेट लगा दो, वो एंट्री कोटिंग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्रालेट्स, एक्रालेट्स आल्सो एंट्री कोटिंग पॉलीमर। तीसरा होता है शेलैक एंड चौथा होता है जेइन। देयर आर ओनली 4 एंट्री कोटिंग पॉलीमर, फर्स्ट वन इज शेलैक, सेकंड वन इज जेइन, थर्ड वन इज थैलेट एंड फोर्थ वन इज एक्रालेट्स। पॉलीमर मतलब क्या, दे विल रिलीज अ ड्रग इन इंटेस्टाइन व्हेन पीएच इज मोर देन 7। ठीक है, स्वीटनर्स में बल्क स्वीटनर आता है, इंडियन स्वीटनर आता है, तो ये आप मेरे बुक में पढ़ लेना, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाद में आपका आता है टैबलेट डिफेक्ट, टैबलेट डिफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। तो देखो पहला डिफेक्ट होता है कैपिंग। कैपिंग मतलब क्या है, पार्शियल और सेपरेशन, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन लेयर फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टैबलेट। तो कैपिंग मतलब क्या है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन लेयर फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टैबलेट। ठीक है, इसका रीजन क्या है, एयर एंट्रैपमेंट। देखो पहला रीजन होता है एयर एंट्रैपमेंट। ठीक है, दूसरा रीजन होता है, ठीक है, दूसरा रीजन होता है एक्सेसिव यूज ऑफ बाइंडर। ठीक है, तीसरा रीजन होता है कॉन्केव पंचेस, चौथा रीजन होता है हाई स्पीड ऑफ द रेट। ठीक है, लैमिनेशन मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, कैपिंग लैमिनेशन। तो अगर रीजन मालूम होगा आपको, कैपिंग का लैमिनेशन का रीजन क्या है, एयर एंट्रैपमेंट। ठीक है, डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग compression, that is compression force, then use of concave punches, excessive drying of granules, insufficient amount or improper binder lubricant, इनकरेक्ट सेट ऑफ डाइज एंड पंचेस, हाई स्पीड ऑफ टरेट। मशीन का टैबलेटिंग का मशीन का स्पीड जाता है तो कैपिंग लेमिनेशन आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अभी ये रीजन आपको मालूम है तो रेमेडी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बुक में से पढ़ लो, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, कैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लेमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट स्टिकिंग पिकिंग। स्टिकिंग मतलब अडियरेंस ऑफ मटेरियल इनटू डाई वॉल। जो वॉल डाई कैविटी होता है उसमें अगर आपके टैबलेटिव ग्रैनुल्स जो है वो अगर वहां पे स्टिक हो गए तो उसको बोलेंगे स्टिकिंग। पिकिंग मतलब क्या, वही स्टिकिंग अगर अपर पंच को या फिर लोअर पंच को है तो उसको बोलेंगे पिकिंग। रीजन क्या है, इनप्रॉपर ड्राइंग, लुब्रिकेशन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली एंड वैक्सी मटेरियल। ठीक है, ठीक है, चिपिंग मतलब क्या, चिपिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट यूजेस। डबल इम्प्रेशन मतलब क्या, दो बार उसको कंप्रेस कर देगा वो डाई, इसके ऊपर आपकी कंपनी का लोगो है, उसको बोलते हैं मोनोग्राम। सो ड्यू टू एनग्रेविंग और मोनोग्राम, डबल इम्प्रेशन, दो बार उसको मोनोग्राम छप जाता है, दो बार उसको लोगो छप जाता है, उसको बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है। सो उसका रेमेडी क्या है, कीइंग। तो यहाँ पे की इंसर्ट करना है आपको, की। पुराने मशीन में की इंग was the remedy, but nowadays newer compression machines are there, becomes free rotating devices. Now double impression is because of the free rotation of either upper punch or lower punch during injection of tablet. तो अभी नए मशीन जो है
उसमें डबल इम्प्रेशन आता नहीं। चिपिंग मतलब क्या है? चिपिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट एज, जो टैबलेट के कॉर्नर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ओके, दैट इज चिपिंग। रीजंस भी है, रेमेडी भी है, इंपॉर्टेंट है। मॉटलिंग मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस, उसके भी रीजन होता है, उसका भी रेमेडी होता है, मेरे बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। टैबलेट कोडिंग क्यों करते हैं? टू मास्क द टेस्ट, टू मास्क द कलर, टू प्रोवाइड द फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन, ठीक है, टू प्रिवेंट द टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, और टू प्रिवेंट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गैस्ट्रिक एनवायरमेंट, to avoid the incompatibilities in the tablet, to improve the pharmaceutical elegance. These are the reasons for coating. Coating के reason ये important है. Most important reason कौन सा? Mask the taste, odor, color of drug, to prevent the physical production, chemical production, to protect the drug from gastric environment, to avoid the incompatibilities. ये सब important reason होते हैं। तो देखो सिंपल, यहाँ पे important part एक होता है आपका कोटिंग सॉल्यूशन। कोटिंग सॉल्यूशन में रेडीमेड कोटिंग सॉल्यूशन आते हैं 3, ओपा लक्स, ओपा स्प्रे, ओपा ड्राई। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, सो कोटिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट अवेलेबल कमर्शियली, used to get a lot variation, but which are the coating ready-made solution? So opalux is used for the sugar coating. So opalux is the opaque color concentrate for sugar coating. ओपा स्प्रे होता है फिल्म कोटिंग के लिए, एंड ओपा ड्राई इज अ कंप्लीट फिल्म कोटिंग कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये बाद में आपको अभी नहीं एक्सप्लेन करता मैं, डायरेक्टली शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट। इसके ऊपर 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, 52 बाबू सोना, इसके ऊपर 5 बार क्वेश्चन। चलो पिल्लू वाले, बाबू वाले, सोना वाले याद रखो, इसके ऊपर 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पिल्लू बाबू सोना करते नहीं बैठने का। शुगर कोटिंग एक बार 2 मिनट में रिवाइज करो, 5 बार क्वेश्चन आ चुका है बार में, ठीक है। 5 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है, याद रखो। चलो पहला स्टेप होता है सील कोटिंग और सीलिंग, ठीक है। सील कोटिंग का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू कोर ऑफ टैबलेट। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2022 में। लास्ट ईयर का पेपर चेक करो, क्वेश्चन रीजन फॉर सीलिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू कोर ऑफ टैबलेट, ठीक है। इसमें शेलैक यूज करते हैं एज अ सीलर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बट शेलैक का डिसएडवांटेज क्या होता है? इट इंक्रीजेस द डिजो एंड डीटी टाइम। जेन भी यूज करते हैं, जेन जब यूज करेंगे आप सील कोटिंग के लिए, तो ये डीटी एंड डिजो इंक्रीज नहीं करेगा टैबलेट का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सीलिंग होता है, पर्पस होता है टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू कोर ऑफ टैबलेट। जीपैट 2021 में आ चुका है, 22 में भी आ चुका है। दूसरा स्टेप होता है सब कोटिंग। सब कोटिंग मतलब it is used, what is the purpose? To round the edges of tablet to increase the bulk of tablet। देखो यहाँ पे tablet weight जो है, tablet weight can be increased by 50 to 100%। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, like doubling of tablet weight is possible in the sub coat sugar coating of tablet, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है आपका सिरप कोटिंग। थर्ड स्टेप होता है सिरप कोटिंग, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथिंग और कलरिंग। रीजन, इसका पर्पस क्या है? टू फिल द imperfections caused in the above step, again to impart a desired color। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, color is added in the following step of sugar coating। so color is added in the syrup coating or also known as smoothing or coloring। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 19 में, ठीक है। एंड सिरप कोटिंग, दिस स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग रिक्वायर्स हाई स्किल। उसके बाद में आता है फिनिशिंग, उसके बाद में पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में आपको याद रखना है कार्नोवा वैक्स यूज करते हैं या फिर बीस वैक्स यूज करते हैं। तो शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट के ऊपर 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक टेबल मिलेगा आपको मेरे बुक में, सिंपल सा टेबल है, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा है मैंने। तो जिनको जीपैट क्वालिफाई करना है शॉर्ट टाइम में मेरे बुक ऑर्डर कर लो, पढ़ लो, ठीक है। बाद में फिल्म कोटिंग आता है। फिल्म कोटिंग में फिल्म कोटिंग पॉलीमर यूज किए जाते हैं। तो नॉन एंट्री कोटिंग पॉलीमर मतलब जो फिल्म कोटिंग पॉलीमर कितने? मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, पोविडोन, देन पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो देखो मिथाइल सेलुलोज जो है, जो सेलुलोज डेरिवेटिव है, ऑल आर फिल्म कोटिंग पॉलीमर। इसमें का आपको याद रखना है इथाइल सेलुलोज इज वाटर इनसॉल्युबल। एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज is commonly used as film for
फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट जीपैट 2019 में आ चुका है। मतलब अभी क्वेश्चन आ चुका है, इथाइल सेलुलोज वाटर इनसॉल्युबल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम सीएमसी, ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल क्या है? इट इज अ प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन द फिल्म कोटिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिल्म कोटिंग हो गया, शुगर कोटिंग हो गया, अभी एंट्री कोटिंग बाकी है। एंट्री कोटिंग का पॉलीमर के बारे में मैंने बोल दिया है। फॉर एंट्री कोटिंग कितने पॉलीमर होते हैं याद रखो, ओनली 4। शेलैक एक होता है, दूसरा होता है थैलेट, सेलुलोज एसिड थैलेट कैप, ठीक है, या फिर पॉलीविनाइल एसिड थैलेट पीवीएपी। ये सब क्या है? पीएच जब आपका स्टमक का बेसिक होगा तब रिलीज करेंगे, ठीक है। देन एचपीएमसीपी, वो भी क्या है? एंट्री कोटिंग। एक्राइलेट्स, तो एक्राइलेट्स में दो आता है, यूड्रेजिट यल, यूड्रेजिट यस। यूड्रेजिट यल विल रिलीज अ ड्रग इन इंटेस्टाइन व्हेन pH is more than 6. यूड्रेजिट यस विल रिलीज when pH is more than 7, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इवेल्यूशन कोटिंग, इवेल्यूशन ऑफ कोटिंग, कोटिंग टैबलेट कोटिंग जो है फिल्म कोटिंग, उसका इवेल्यूशन क्या क्या टेस्ट है? आर्टिजन टेस्ट होता है, डायमेट्रल क्रशिंग स्टेंट होता है, देन बाकी वाटर वेपर परमेबिलिटी टेंसाइल टेस्ट होता है। बाकी ये टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म डिफेक्ट में आता है स्टिकिंग एंड पिकिंग, रफनेस, ऑरेंज पिल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कलर सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग ऑफ कोटेड टैबलेट, दैट इज नोन एज ऑरेंज पिल इफेक्ट, क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ठीक है। इसमें, ठीक है, तो उसमें जो है, जब आपको ऑरेंज पिल इफेक्ट आता है तो उसमें सोलवेंट जो होते हैं कोटिंग सॉल्यूशन के लिए, जो सोलवेंट यूज किया है उसको ऐड करना है, मतलब थिनिंग करना है, ठीक है। हेजिंग एंड फिलिंग, ब्लिस्टरिंग, हेजिंग और डल फिल्म, हेजिंग और डल फिल्म इज आल्सो नोन एज ब्लूम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड कोटिंग में कंप्रेशन कोटिंग आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग आता है, डीप कोटिंग आता है, वैक्यूम कोटिंग आता है, तो ये बाद में आप मेरे बुक में से पढ़ लेना। तो दिस विल बी एंड योर टुडेज रैपिड रिवीजन ऑन प्रीफॉर्मुलेशन एंड टैबलेट, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कुछ रैपिड रिवीजन के नोट्स आपको लेना है और आपको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही सेशंस मैंने और लेने चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं और भी सेशन लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखो बॉस, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा धंधा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जीपैट का धंधा चालू किया है। बस आ जाओ, क्लास ज्वाइन करो, 20,000 की, 25,000 की। देर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी 25,000 or 30,000 क्लासेस, ठीक है। आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी। सेल्फ स्टडी से सबसे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो भी टॉपर्स आते हैं वो सेल्फ स्टडी करके ही आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है, वो बाद में इंटरव्यू देखने को जो मिलता है वो अलग रीजन है उसका। कभी मुझे पर्सनली फोन करो, मैं आपको बोलूंगा क्या रीजन है। You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. Read 2-3 times before exam and qualify 100% guaranteed. अगर आप अपना 100 टका देने को तैयार हो तो मैं आपको 200 टका गारंटी देता हूँ कि आपका रैंक जीपीएट में आ जाएगा। बट अगर आप अपना 100 टका देने के लिए तैयार हो, 100% मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मैं 200% गारंटी देता हूँ आपको कि आप जीपैट में रैंक ला सकते हो। सिर्फ जो भी बचा कुछ टाइम है उसमें भी आप रैंक ला सकते हो। आपको सिर्फ ये 2 बुक पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करता हूँ, रिजल्ट भी बहुत अच्छे है, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट नाइपर में है। एक नाइपर के कॉलेज में मुझे वहाँ के 2-4 बच्चे तो 100% जाते। मोहाली में कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, ठीक है। हर एक नाइपर इंस्टीट्यूट में 4 या 5 बच्चे मिलेंगे और उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, कितना पैसा खर्च किया? मैक्सिमम 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, और उसमें वो नाइपर हो गए, ठीक है। तो आपको 20,000 रुपये का क्लास लगने का जरूरत नहीं है। आपको 5,000 का, 4,000 का स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखो मेरे जो बुक्स है दोनों नियर अबाउट, उसमें आएगा आपका 1,400 पेजेस। तो अगर 1,400 पन्ने के जो बुक्स है मेरे दो, उसको मैंने अगर डिवाइड किया होता 100 पन्ने का बुकलेट्स, तो मेरे कम से कम 10 बुकलेट बन जाते। और जो बाकी लोग आपको बेच रहे पास 5,000 में, 6,000 में, ठीक है, बुकलेट के नाम पे,
तो वो मैं भी कर सकता, बट मेरा एम वो नहीं है. माई एम इज नॉट अ बिजनेस, दैट्स वाई आई नॉट. बट आप बोले सर आपका बिजनेस नहीं तो फोकट में दे दो. मेरे बाप का प्रिंटिंग प्रेस नहीं है भाई, नहीं तो मैंने फुकट में भी दिया होता. ठीक है, मुझे सेवा ही करनी है आपकी. मेरे बाप का अगर प्रिंटिंग प्रेस होता तो मैंने आपको बुक्स फुकट में दिए होते, लेकिन मेरे बाप का प्रिंटिंग प्रेस नहीं ना, वो बेचारे खेती कर करके मर गए. ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने के कारण मैं आपको बुक फ्री में नहीं दे सकता, वो प्रिंटिंग का कॉस्ट होता है उसका. तो ओके, सो रीड 2-3 times एंड क्वालिफाई 100%, अगेन गारंटेड. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको लगता है और भी सेशन ऐसे चाहिए तो आप फटाफट कमेंट में यस यस टाइप करो. ठीक है, और ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर यू कैन, व्हाट्सअप नंबर में जो है वो उसमें आप ज्वाइन करो.